ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लाङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यम् ईश्वरं। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. Thank you for coming for this two sessions that we'll have on forgiveness. It's actually a 3-session seminar. We will try to complete it in 2. If we can't do it, then future mein kabhi karenge. So because I was thinking now when coming, should I do it fast? So I was thinking I'll just go slow according to the what I have prepared. And if we're not able to complete, we'll do it in January next year. So fine. It's called Unleash the Power of Forgiveness. But I wanted to first all of you to chant one verse. Is it possible to get 9.1 Bhagavad Gita? And I also need to see Bhagavad Gita 9.1. है क्या हो सकता है? Can please repeat after me. Shri Bhagavan Uvacha Idam tute guyyatamam Pravakshamanasuyave Jnanam Vijnana Sahitam यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। Please repeat after me the word to word synonym. Shri Bhagavan Uvacha, the Supreme Personality of Godhead said, Idam, this, tu, but, te, unto your, guhyatamam, the most confidential, pravakshami, I am speaking, anasuyave, to the non-envious, jnanam, knowledge, vijnanam, realized knowledge, sahitam, with, yat, which, gyatva, knowing, mokshase, you will be released,
Ashubhat from this miserable material existence. Translation and purport by His Divine Grace Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. The Supreme Personality of Godhead said, "My dear Arjuna, because you are never envious of me, I shall impart to you this most confidential knowledge and realization, knowing which you shall be relieved of the miseries of material existence." Purport: as a devotee hears more and more about the Supreme Lord, he becomes enlightened. This hearing process is recommended in the Srimad Bhagavatam. Sorry. The messages of the Supreme Personality of Godhead are full of potencies, and these potencies can be realized if topics regarding the Supreme Godhead are discussed amongst devotees. This cannot be achieved by the association of mental speculators or academic scholars, for it is realized knowledge. The devotees are constantly engaged in the Supreme Lord's service. The Lord understands the mentality and sincerity of a particular living entity who is engaged in Krishna consciousness and gives him the intelligence to understand the science of Krishna in the association of the devotees. Discussion of Krishna is very potent, and if a fortunate person has such association and tries to assimilate the knowledge, then he will surely make advancement towards spiritual realization. Lord Krishna, in order to encourage Arjuna to higher and higher elevation in his potent service, describes in this 9th chapter matters more confidential than any he has already discussed. The very beginning of Bhagavad Gita, the first chapter, is more or less an introduction to the rest of the book. And in the second and third chapters, the spiritual knowledge described is called confidential. Topics discussed in the 7th and 8th chapters are specifically related to devotional service, and because they bring enlightenment in Krishna consciousness, they are called more confidential. But the matters which are described in the 9th chapter deal with unalloyed pure devotion. Therefore, this is called the most confidential. One who is situated in the most confidential knowledge of Krishna is naturally transcendental. He therefore has no material pangs, although he is in the material world. In the Bhakti Rasamrita Sindhu, it is said that although one who has a sincere desire to render loving service to the Supreme Lord is situated in the conditional state of material existence, he is to be considered liberated. Similarly, we shall find in the Bhagavad Gita, 10th chapter, that anyone who is engaged in that way is a liberated person. Now, this first verse has specific significance. Knowledge, idam jnanam, refers to pure devotional service which consists of 9 different activities: hearing, chanting, remembering, serving, worshipping, praying, obeying, maintaining friendship, and surrendering everything. By the practice of these 9 elements of devotional service, one is elevated to spiritual consciousness, Krishna consciousness. At the time when one's heart is cleared of the material contamination, one can understand the science of Krishna. Simply to understand that the living entity is not material is not sufficient. That may be the beginning of spiritual realization, but one should recognize the difference between activities of the body and spiritual activities, by which one understands that he is not the body. In the 7th chapter, we have already discussed the opulent potency of the Supreme Personality of Godhead, its different energies, the inferior and superior natures, and all this material manifestation. Now in chapters 9 and 10, the glories of the Lord will be delineated. The Sanskrit word anasuyave, now this is the main topic for today, anasuyave. The Sanskrit word anasuyave in this verse is also very significant. Generally, the commentators, even if they are highly scholarly, are all envious of Krishna, the Supreme Personality of Godhead. Even the most erudite scholars write on Bhagavad Gita very inaccurately. Because they are envious of Krishna, their commentaries are useless. The commentaries given by the devotees of the Lord are bona fide. No one can explain Bhagavad Gita or give perfect knowledge of Krishna if he is envious. One who criticizes the character of Krishna without knowing him is a fool. So such commentary should be very carefully avoided. For one who understands that Krishna is the Supreme Personality of Godhead, the pure and transcendental personality, these chapters will be very beneficial. Srila Prabhupada ki jai. So if you see this verse, you can go to the first verse. So I want to discuss today and on Monday, right? We are meeting today and Monday. The topic of forgiveness, and I've done some research from our Vaishnava Acharyas, commentaries, and like that. And so it may appear very strong, or it may appear आपको लग सकता है कि अरे बहुत strong बोल रहे हैं आप, और
थोड़ा हैवी भी लग सकता है, क्योंकि ये मेरे शब्द नहीं है, हमारे आचार्यों के बोल हैं, तो मैं एज इट इज़ एक तोते जैसा रिपीट करूँगा, थोड़ा अपना भी 2 पैसे का बीच में साक्षात्कार डालूंगा। तो आप मुझे क्षमा करना अगर थोड़ा आपको लगे, दिल को ठेस पहुँचे तो, क्योंकि ये पर्सनल नहीं है, नथिंग पर्सनल अबाउट इट। और विशेष रूप से मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि ये जो मैं अभी प्रिपेयर करके आया हूँ, पढ़ रहा हूँ, ये मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, और भगवान की विशेष योजना से आप सब मेरे सामने बैठे हो, तो आपको बोलने के बहाने मेरा ही रिवीजन हो जाएगा। तो ये बोलने के लिए काफ़ी मतलब योग्यता लगता है इस विषय पर। एक साक्षात्कारी व्यक्ति के रूप से मैं नहीं कह रहा हूँ, और कहीं आपको इंस्ट्रक्टिव लगा कि अरे तो मुझे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो आप मुझे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत सी आई मे स्पीक in an instructive tone sometimes, not because I have more realization, that is because maybe I have made more mistakes than you, so I can I can speak with confidence like that. Okay, so it's a very very important topic, and according to some of us devotees, we have been discussing this in the past. ये जो topic है envy, this is the most important subject that a sadhaka should study when he is wanting to purify his own heart. ये जो 9th चैप्टर है गीता का, इसका नाम क्या है, कोई जानता है? मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, सबसे गुह्य ज्ञान गीता में 9th चैप्टर में। आप देखोगे 9th चैप्टर भगवत गीता कितने चैप्टर्स का है? 18 चैप्टर्स। तो 18 चैप्टर्स को 3 भागों में डिवाइड किया है। फर्स्ट 6 क्या मेन थीम है? कर्म योगा। 7 to 12 का मेन थीम क्या है? भक्ति योगा। 13 to 18 मेन थीम क्या है? ज्ञान योगा। तो भक्ति योगा बीच में है, जैसे आपके वड़ा पाव में पाव है, पाव ऊपर नीचे पाव रहता है, बीच में बटाटा वड़ा रहता है, बर्गर। ओ चंद्रेश जी, ओ नाइस टू सी यू। आई वांट टू इंटरप्ट ब्रीफली, माय वेरी डियर फ्रेंड फ्रॉम इंग्लैंड, चंद्रेश जी इज हियर। आई वांट टू ऑल्सो बेग फॉरगिवनेस। ही केम टू मीट मी डे बिफोर यस्टरडे, बट इतना मीटिंग्स था सुबह से शाम तक, इतना बिजी था, 1 मिनट भी नहीं स्पेयर कर पाया, एंड ही वेटेड फॉर ऑलमोस्ट 5 hours. And I'm extremely sorry, Prabhu. And today you are so kind, you came all the way to Borivali. Very, very grateful to you. So let us welcome him. He's a very wonderful host, wonderful devotee. Hare Krishna. Let us welcome him in our traditional style by loudly chanting Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. It's a wonderful family. We're doing beautiful devotional service. I think your daughter went to Mayapur to study Bhakti Shastri also. Yeah. And Gaur Gopal Prabhu have very fond memories of going to their house. Thank you, Prabhu, for coming. So, coming back to the topic of 9th chapter. तो अभी देखिए हमने क्या डिस्कस किया अभी? वड़ा पाव, राइट? नहीं, तो वड़ा पाव में पहला का जो लेयर है नीचे का है वो पाव रहता है, अंदर मेन बटाटा वड़ा रहता है। तो गीता में जो पहला 6 अध्याय है और जो लास्ट का 6 अध्याय है, उसके बीच में जो मेन एसेंस है वो किधर है? एसेंस किधर है? 7 to 12. दैट इज द मेन एसेंस ऑफ गीता। और वो कौन सा सब्जेक्ट पे डिस्कस करता है? भक्ति योगा। और उसमें भी मिडिल चैप्टर कौन सा है? 9th चैप्टर। तो 9th चैप्टर इज द एसेंस ऑफ द एसेंस। आप समझ रहे हैं? और उसका नाम क्या है? मोस्ट कॉन्फिडेंशियल। सबसे सीक्रेट चीज उसके अंदर रखा है। जैसे मैं जब कॉलोनी में बड़ा हुआ था, हमारे कॉलोनी में एक प्रथा थी, आई डोंट नो यहाँ पे है कि नहीं, तो हमारे सोसाइटी में एक, I was a child, my mother was one of the leaders in that ladies, they had a spiritual sangha, they used to meet for Satyanarayan Puja, Ramayana and all that. So they used to have, and I used to go as a kid there, I used to get to eat nicely. So I used to go there in that group. So they used to have one particular thing, they used to make one item, और एक किसी आइटम में अंदर एक कॉइन रहता था, कुछ तो एक स्पेशल सिल्वर का कुछ कॉइन रहता था, और जिसको मिल गया हो तो उसका कुछ तो they used to have something, but I remember that was considered as the essence. वो फीस्ट था, फीस्ट के अंदर एक आइटम था, एक आइटम के अंदर ये एसेंस था। तो वैसे गीता इज लाइक दैट, बिग ब्रॉड नेक्टर, उसके अंदर 9th चैप्टर, 7 to 12 इज लाइक एसेंस, और उसके अंदर 9th चैप्टर, एंड दैट चैप्टर शुरू होता है कैसे? इदम तुते गुह्यतमम। सबसे कॉन्फिडेंशियल चीज़ ही बोलने वाला हूँ, प्रवक्ष्यामि, मैं अभी आपको बोलने वाला हूँ अर्जुन। और क्यों बोलने वाला हूँ? आपकी योग्यता क्या है? अनसूयवे। अनसूयवे अर्थात जो ईर्ष्या से मुक्त है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ईर्ष्या से मुक्त होना, एनवी से फ्री होना। अभी हमारा टॉपिक क्या है वैसे? अनलीश द पावर ऑफ फॉरगिवनेस। तो बहुत बार हम बोलते हैं फॉरगिवनेस सेमिनार बहुत पॉपुलर है, वेरी पॉपुलर। क्यों? लोगों को लगता है प्रभु मुझे इतने लोगों ने मेरे प्रति अपराध किया है, मुझे फॉरगिव करना है। तो कैसे फॉरगिव करना है जरा सिखाइए। मैं इतना अच्छा हूं, इतना बड़ा हूं, इतना योग्य हूं, क्या करें, लोग समझते नहीं। सो आई वॉन्ट टू फॉरगिव, indirectly we are saying I am great. See, now don't misunderstand me, you have to come for the whole 3 sessions to know that I am not saying that we should forgive someone who has abused or raped, or not like that. Don't get me wrong. I'm talking about day to day life challenges, that devotee dynamics, and the principle I'm talking. Many times we think I want to forgive because I am great, I have been wrong. It's subtle pride, that's it. Therefore, forgiveness is important, but that is the third step. Forgiveness is what step? First step क्या है? I am wrong. मैं नहीं बोल रहा हूँ वो सिचुएशन में आप रॉन्ग है। इन जनरल आई हैव फॉल्ट्स। अगर हमारा ये मूड है कि मेरे अंदर भी गलतियां हैं और अपनी गलतियों को हम देखते हैं, दिस इज द फर्स्ट, कन्विंस्ड ऑफ ओन फॉल्ट्स। सेकेंड स्टेप क्या है? If I have faults, if I make mistakes, then what I should do? Seek forgiveness. And then third step is also important, very important. What is that? I need to forgive is very very important. In fact, वो सेमिनार ही उसके ऊपर है। पर आई फील ये डिस्कस नहीं भी हुआ ना, ये बाद में भी कर सकते हैं, पर पहले ये समझना ज़रूरी है कि हमारे अंदर भी गलतियां हैं, हम भी गलती करते हैं और हमें क्षमा मांगना चाहिए। अगर हम क्षमा करने का कल्चर ही नहीं है तो हम दूसरों को क्षमा नहीं कर सकते। Our problem is we don't want to see our own heart. So as I said in the beginning, कुछ स्ट्रांग लगे तो आप प्लीज फॉरगिव कर दीजिए, बट इट्स अ फैक्ट। फॉरगिवनेस, द एटीट्यूड ऑफ वांटिंग टू फॉरगिव मेनी टाइम्स is coming from a space of I have been wronged, but it is important to forgive definitely, पर अपनी गलतियों को देखना जरूरी है। आईना जब भी उठाया करो, आईना जब भी उठाया करो, पहले देखो फिर दिखाया करो, है ना? तो आईना देखो, उठाते हैं हम, तुरंत क्या करते हैं? ये देखो ये गलती है, तुम देखो तुम कैसा है, तुम कैसा है। अरे पहला ये तो देखो। तो आईना इज कंपेयर टू शास्त्र, स्क्रिप्चर्स, एंड जो सत्संग करते हैं हम, कृष्ण कथा सुनते हैं, तो वो शास्त्र जो है आईने के जैसा है। तो जब भी हम अच्छा कुछ क्लास सुनते हैं, फॉरगिवनेस, ये वो, एनवी, अच्छा अच्छा कुछ पॉइंट सुनते हैं, तो ये शास्त्र का आईना हम उठाते हैं और क्या करते हैं? प्रभु देखो ये फॉलो नहीं कर रहे आप, प्रभु ये गलती देखो शास्त्र में लिखा है, ये आप ये कर रहे हो, ये कर। अरे आईना उठाते तो पहले खुद को देखना है, फिर बाद में दूसरों को दिखाओ। उम्र भर गालिब ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करता रहा। ये मैंने कहीं से सुना है। ये नोट्स में नहीं है, मेरा याद आ गया। बट ऐसा है, सो मैंने देखा, एक बार मैं क्लास दिया था एनवी के ऊपर, तो भागवतम क्लास था, तो एक डिवोटी ना आगे बैठा था और ऐसा सर हिला रहा था, तो मुझे लगा उसको नहीं तो हर टच हुआ, तो मुझे भी अच्छा लगा कि उसको उसको हेल्प हुआ मेरे क्लास से। तो क्लास के बाद आया, बोला थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू सो मच, इतना इंपॉर्टेंट था वो, प्रभु जी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। पर मुझे ये दुख है कि प्रभु जी, दूसरे प्रभु जी ने वो आए नहीं आज, उनको सुनना चाहिए था, मैं उनको लिंक भेजूंगा इस क्लास का। तो फिर मुझे इच्छा हुआ बोलने का, प्रभु जी वो उनके लिए नहीं था, बट देन आई रियलाइज आई शुड नो दैट आई एम स्पीकिंग दिस फॉर माई सेल्फ, सो आई कुडंट जज हिम। बट ये है दुनिया का रूल, समझदार एक मैं हूं, बाकी सब नादान। समझदार एक मैं हूं, बाकी सब नादान, इसी भ्रम में घूम रहा है आजकल हर इंसान। Everybody is roaming in this illusion that I am smart, everybody needs education,
Everybody needs to understand. So this is the first and the most important step in talking about forgiveness, that अपना हार्ट को हमें सॉफ्ट करना होगा. अगर हमारा हृदय सॉफ्ट होगा तो ही हम जेन्युइनली किसी को प्रेम कर सकते हैं और किसी को क्षमा कर सकते हैं. नहीं तो हम क्षमा नहीं कर सकते किसी को. और हार्ट तब सॉफ्ट होता है जब we are vulnerable. I've seen that many times we are scared to be vulnerable. If you are vulnerable to the right person, it can be very, very powerful. But anyway, so the point I'm saying is I also need help. I need to understand I am envious. I need to understand I have anarthas. And my number one enemy is what? Envy, ईर्ष्या. तो जब मैं छोटा था, कॉलेज में था, तो हम लोग क्रिकेट देखते थे. उस समय इंडिया का नंबर 1 बैट्समैन था सचिन तेंदुलकर. अभी तो 20-22 साल से देखा नहीं है मैंने क्रिकेट. तो तेंदुलकर बहुत फेमस था. सो ही वॉज, तो जो ऑपोजिशन टीम, अरे बाप रे अभी तेंदुलकर के बारे में बोला तो एक स्टोरी बोल देता हूँ. परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज अभी हाल ही में उनको मिले एक शादी में. तो बात कर रहा था वो, ये तेंदुलकर महाराज से बात कर रहे थे. तो उसने पूछा, स्वामी जी आप क्रिकेट देखते हैं क्या? क्रिकेट आपको पता है क्या? तो महाराज ने बड़ी नम्रता से कहा कि सॉरी, मैं तो अमेरिका से आया हूँ और मैं आध्यात्मिक जीवन में बिजी रहता हूँ, क्रिकेट के बारे में अधिक ज्ञान नहीं है, क्षमा करना मुझे. पर मैं जिस कम्युनिटी में रहता हूँ और जहाँ पे मैं प्रचार सेवा करता हूँ, वहाँ पे बहुत सारे डिवोटीज़ हैं और बहुत सारे लोग क्रिकेट लाइक करते हैं और सीक्रेटली देखते भी होंगे बहुत सारे लोग और क्रिकेट को बहुत चाहते हैं और आपको बहुत प्रेम करते हैं. हमारे यहाँ पे बहुत सारे डिवोटीज़ हैं जो आपको बहुत सम्मान करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं. और मैं आपको बहुत सम्मान और प्रेम इसीलिए करता हूँ, इसलिए नहीं कि आप बहुत बड़े क्रिकेट प्लेयर हैं, इसीलिए करता हूँ क्योंकि आप 25 साल तक बड़े लेवल पे क्रिकेट खेलते रहे, पर कभी आपने गलत कुछ नहीं किया. आपने वैल्यूज़ फॉलो किया, इंटीग्रिटी के साथ जिया और आपका कैरेक्टर बहुत बढ़िया था. तो ये जो आपके कैरेक्टर है, वैल्यूज़ है आपका, इसके लिए मैं आपसे बहुत अट्रैक्टेड हूँ. तो जब ऐसा महाराज ने कहा था, उनको बहुत अच्छा लगा. His eyes became moist with gratitude. फिर उन्होंने कहा, एक महाराज को एक पॉइंट कहा कि आपने आज मुझे मेरे पिताजी की याद दिलाई. क्योंकि जब मैं इंडियन टीम में मेरा जब एंट्री हुआ, जब मैं 16 साल का यंग लड़का था, तब मेरे पिताजी ने मुझे बुला के कहा कि सचिन देखो, अभी तो तुम इंडियन टीम में आ गए हो, अभी अगर अच्छा खेलोगे तो पूरा दुनिया तुम्हारी प्रशंसा करेगा और तुम बहुत फेमस हो जाओगे. पर याद रखना, कभी भी दुनिया आपको आपके क्रिकेट के एबिलिटी के लिए आपसे प्रेम करे, ऐसा नहीं होना चाहिए. दुनिया आपसे आपके क्वालिटीज़ के लिए प्रेम करना चाहिए. अगर आप ऐसा करोगे तो आपका जीवन सफल है. ऐसा मेरे पिताजी ने मुझे कहा था. और आज 30 साल बाद आपसे मैं वही सुन रहा हूँ जो मेरे पिताजी ने कहा. तो मेरे पिताजी की मुझे बहुत याद आ रही है. तो ये थोड़ा साइड टॉपिक, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट हैपेंड रिसेंटली. सो एनीवे, व्हाई आई एम गिविंग एग्जांपल ऑफ तेंदुलकर, कि तेंदुलकर जब हम लोग थे छोटे तो देखते थे कि ऑपोजिशन टीम का टारगेट एक ही रहता था कि इसको आउट करना है, और ये ओपनिंग बैट्समैन करके आता था. तो ये आउट हो गया तो बाकी सब चिंदी प्लेयर है, उनको तो ऐसे आउट कर देंगे. मेन बैट्समैन ये है, इसको आउट करना है. तो सबका इसी को स्लेजिंग करते थे, उसको अटैक करते थे, सब उसके ऊपर ही फोकस रहता था तेंदुलकर. तो तेंदुलकर जो है हमारे इस उदाहरण में एनवी को रिप्रेजेंट करता है और बाकी सब प्लेयर जो है बाकी अनर्थ. तो अगर हम बॉलिंग टीम में हैं, ऑपोजिशन टीम में, तो हमको किसको आउट करना है? पहले तेंदुलकर को नहीं, एनवी को आउट करना है. आपका मन किधर है वो समझ जाता है. तो वी हैव टू फर्स्ट डिसमिस envy from our heart. Once envy goes, then what happens? Or if we take care of envy, then the other anarthas are easily taken care of. Lust, anger, pride, illusion, greed. But most difficult है तेंदुलकर को आउट करना, envy को निकालना. क्यों? Because we are convinced I am not envious. मैंने देखा है डिवोटीज बहुत हम्बल रहते हैं, बोलते हैं प्रभु जी बहुत लस्ट है अंदर, काम वासना बहुत है प्रभु, ग्रीड है पैसे का,
ये सब मानना आसान है, बट एनवी मानना बहुत डिफिकल्ट है। हम उसको जस्टिफाई करते हैं, नो प्रभु आई जस्ट नो आई एम नॉट सो अट्रैक्टेड टू हिम, इज ओके, विल नेवर एडमिट दैट आई एम एनवियस। बहुत डिफिकल्ट है। इसीलिए दक्ष करके एक बहुत बड़े हमारे भागवत में आता है दक्ष का उदाहरण। तो एक बकरी का उनको सर मिला था, बहुत बड़ी लीला है, इसमें हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो अच्छा फोटो लेके आए प्रभु जी आप। सो दक्ष को भगवान शिव ने उनका सर काट दिया था। बहुत बड़ा पास टाइम है वो। फिर ही हैड पुट अ गोट्स हेड ऑन हिज नेक। तो दक्ष ने जब शिव जी के प्रति अपराध किया दक्ष यज्ञ में, तो सबसे पहले जब वो बहुत ही कठोर शब्दों में, बहुत ही कड़वे शब्दों में वो भगवान शिव की आलोचना करते हैं, पर क्रिटिसाइज करने के पहले वो जो 10-15 श्लोक आता है उसमें गाली दे रहे हैं शिव जी को, क्या क्या गंदा गंदा गाली दे रहे हैं। पर गाली देने के पहले जो इंट्रोडक्शन रहता है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो पहला क्या बोलते हैं वो, न अभी मैं जो बोलने वाला हूं, ध्यान से सुनिए सारे जो यहाँ पे लोग बैठे हैं, आप बहुत प्रतिष्ठित लोग हैं, सम्मान के योग्य हैं। आपको मैं सबसे पहले एक आश्वासन दिलाता हूं कि अभी मैं जो बोलने वाला हूं, न च अज्ञानाम न च मत्सरात्, मैं अज्ञान और ईर्ष्या से नहीं बोलने वाला हूं। तो सबसे पहला साक्षात्कार आता है जिसका हृदय पूरे ईर्ष्या से भरा होता है कि मैं अज्ञान में भी नहीं हूं और मैं ईर्ष्या में भी नहीं हूं। तो ईर्ष्या का पावर यह है कि वो हमें कन्विंस करता है कि मेरे अंदर बाकी अनर्थ है पर ईर्ष्या नहीं। तो इसीलिए आज का मेरे क्लास का एजेंडा क्या है, ये कन्विंस करना, आपको नहीं अपने आप को, मुझे ये कन्विंस करना है कि आई हैव एनवी एंड आई हैव मेड मिस्टेक्स एंड आई नीड टू बी फॉरगिवन। मेरे अंदर ईर्ष्या है और ईर्ष्या से युक्त मैंने गलतियां की हैं और मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। फिर नेक्स्ट क्लास में या आगे कभी हम डिस्कस कर सकते हैं कैसे दूसरों को क्षमा करना है। नहीं तो दूसरों को क्षमा करने का विषय बहुत आकर्षक है, क्योंकि मैं बहुत बड़ा हूं, बहुत अच्छा हूं, मुझे क्षमा करना होगा। नहीं, सबसे पहले हमें अपनी गलती देखनी है और दूसरा हमें क्षमा मांगना है, फिर दूसरों को भी क्षमा करना है। जैसे हमारे रघुनाथचरण प्रभु स्कूल के ही हैं, मुझे बोले एक बार, मैंने अपनी ज़िंदगी को यूं आसान कर दिया, कुछ लोगों से माफ़ी मांग ली, कुछ लोगों को माफ़ कर दिया। इतना अच्छा लगा ये स्टेटमेंट मुझे, कुछ लोगों से माफ़ी मांग ली, माफ़। तो लाइफ बिकम्स एक्सट्रीमली पीसफुल when we seek forgiveness from a genuine space and when we genuinely authentically forgive people। तो अभी मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या प्रूफ है कि आपके दिल में एनवी है या मेरे दिल में? हाउ कैन आई नो? व्हाट इज द सिंपल प्रूफ दैट आई कैन नो आई हैव एनवी? डिसलाइकिंग फॉर अनदर पर्सन, दूसरे व्यक्ति को अच्छा वो नहीं लगता हमें, ये प्रूफ है कि हमारे अंदर एनवी है। दूसरा क्या है? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरे का सक्सेस हमें अच्छा नहीं लगता या अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। अरे इतना सफल हो गया, वो कैसे हो गया, क्या हो गया, अच्छा वो थोड़ा उसने वो किया रहेगा, थोड़ा चीटिंग किया रहेगा, ये किया रहेगा। वेरी गुड पॉइंट। एनीथिंग एल्स? हाउ कैन वी नो दैट आई एम हैविंग एनवी इन माई हार्ट? हाँ, सेटिस्फाइड नहीं हो लाइफ में, जब जनरली डिससेटिस्फैक्शन रहता है हमेशा। और कुछ है जिससे हमें पता चल सकता है कि हमारे अंदर एनवी है? एक मिनट, वेरी वेरी नाइस पॉइंट। व्हाट इज दैट? वेरी गुड पॉइंट। कैनॉट अप्रिशिएट अदर्स। वो जेन्युइनली ना अप्रिशिएट नहीं कर, अच्छा दिखता ही नहीं तो अप्रिशिएट कैसे करेगा? जैसे मैं एक सीक्रेट बताता हूँ हमारे ब्रह्मचर्य आश्रम का ही, बहुत साल पहले का स्टोरी है। तो अरे ये भी फोटो लेके आ गए आप। गुड। तो हम लोग बैठे थे महाराज के, मतलब महाराज नहीं थे उस समय, ऐसे बैठे थे, गप्पे मार रहे थे आश्रम में। ये हमारा ब्रह्मचर्य आश्रम का कॉमन रूम है जहाँ पे हम लोग सोते हैं रात को। तो एक बार हम लोग बैठे थे, तो एक डिवोटी का बर्थडे था, तो मैं होस्ट था, मतलब कंपेयरिंग कर रहा था। तो हम लोग ऐसे इनफॉर्मली बैठे थे। मैंने कहा प्रभु जी, ज़रा प्रभु जी की बताओ, इनका बर्थडे आज, बताओ कुछ। तो उसने कहा प्रभु जी इतने अच्छे डिवोटी है, ये है। मैंने कहा थैंक यू, हरी बोल, अच्छा आप थोड़ा बताओ, ऐसा करके मैं सबको बोल रहा था। और मुझे मालूम था वहाँ पे 2 डिवोटी थे जो इसको पसंद नहीं करते थे, मुझे मालूम था, तो मैं उनको अवॉइड ही कर रहा था। आई डिडंट वांट टू क्रिएट दैट। ओ
बट क्या हो गया, वो ऐसा खुशी में मस्ती में ना निकल गया मेरे मुझे, अरे प्रभु जी आप जरा कुछ बताओ। तो उन्होंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया, क्योंकि वो ऐसे ही ज़बरदस्ती बैठे थे, क्योंकि ही वांटेड टू शो दैट। और जैसे मैंने भी स्पॉन्टेनियसली पूछा, तो स्पॉन्टेनियसली सबका नज़र उनके ऊपर गया, तो वो ऐसे स्माइल किए पहले, क्योंकि अभी कैमरा इज ऑन हिम। बहुत अच्छे डिवोटी हैं, बहुत अच्छे हैं, हरी बहुत अच्छा, मतलब वेरी नाइस, कृष्णा कॉन्शियस, वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू, हरे कृष्णा। ऐसा इतना वो बोल ही नहीं पाए, इट वॉज सच अ चैलेंज, एंड आई फेल्ट वेरी गिल्टी दैट मैंने उनको ऐसा। तो दूसरे डेवोटी थे, फिर मैंने उनको बोलूँगा ही नहीं, क्योंकि मालूम था वो भी थोड़ा कुछ तो उनका रिलेशन में थोड़ा स्ट्रेन था, तो मैंने केयरफुली अवॉइड किया। बीच में उन्होंने नहीं बोला मुझे कुछ बोलना है, मैं बोला, अरे बाप रे, खुद से बोल रहे। तो उन्होंने शुरू किया, अच्छा है वो थोड़ा एज में बड़े है उससे, जिसका बर्थडे है उससे थोड़ा एज में प्रभु जी बड़े थे। प्रभु जी ने कहा अच्छा है हमारा प्रभु जी, अच्छा है, थोड़ा आलसी है पर थोड़ा मायावाद भी पढ़ता रहता है, वो मायावाद फिलोसफी थोड़ा, अच्छा लड़का अच्छा है। तो मुझे वो शोले पिक्चर का वो डायलॉग याद आ रहा था, जो मैंने बहुत साल पहले देखा था। वो ग्लोरीफाई करने के चक्कर में सब उसका गाली देता है, वैसे प्रभु जी सिर्फ उसकी गलतियां बता रहे थे, और बड़े ऐसे नहीं अच्छा प्रभु जी है, बहुत अच्छा प्रभु जी है। वो क्या है, वो मैं बैकअप में आता था, वो लेट आता था हमेशा। अरे बर्थडे चल रहा है और उसको चुन चुन के उसने ऐसा गलतियां, मेरे को इतना एम्बैरेसिंग लग रहा था। फिर मेरे मुंह से निकल गया, प्रभु जी इनका बर्थडे आज बर्थडे। फिर वो प्रभु जी ने कहा मालूम है, इसलिए इतना ही बोल रहे प्रभु जी, इससे ज्यादा नहीं बोल रहे। So it is like that, when we just can't, it's difficult to say, difficult to appreciate. So I'm happy that you recognize this point, that we can know I'm envious when I'm not able to appreciate someone. Not because of ignorance, just because वो दिल में ही नहीं है. And mistakes, immediately I can point. Mistakes I can immediately say, ये mistake, ये all these things I have list. एंड बेस्ट एग्जाम्पल इसके पॉलिटिशियंस हैं, आपको ज़्यादा पता है, पॉलिटिक्स में तो बस थोड़ा भी कुछ हुआ पाउंस, राइट। पहले ऐसे नहीं होते थे पॉलिटिशियंस। आई हैव रेड अबाउट लिंकन, अब्राहम लिंकन का मैंने काफ़ी बुक्स पढ़ा, उनका कोटेशंस पढ़ता हूँ, उनके एनेक्डोट्स बहुत पढ़े मैंने। उनको एक बार उनका जो रेवल पॉलिटिशियन था, आज के वातावरण में हम इमेजिन ही नहीं कर सकते, 2019 के इलेक्शंस के पहले ऐसा इम्पॉसिबल। और लिंकन को क्या हुआ, अब्राहम लिंकन को उनके राइवल ने बड़े कठोर शब्दों में उनकी आलोचना की। तो फिर लिंकन के पास रिपोर्टर्स गए, बोला व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस पर्सन, तो उसके बारे में पूछा। तो लिंकन ने तुरंत कहा, ही इज़ अ ग्रेट मैन, ही इज़ वेरी नाइस, ही इज़ अ मैन ऑफ ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, इज़ वेरी डिसिप्लिन्ड एंड इज़ गॉट गुड, ऐसा करके उसको अप्रिशिएट किया उसको। तो रिपोर्टर ने कहा, बट डू यू नो व्हाट ही हैज स्पोकन अबाउट यू, he has said that you are uncouth and ये वो सब बताया। तो लिंकन ने कहा, आई थॉट यू आस्क्ड मी व्हाट आई थिंक अबाउट हिम, दैट्स व्हाट आई थिंक अबाउट हिम, आई टोल्ड यू व्हाट आई थिंक अबाउट। इमीडिएट, ही हैड नो प्रॉब्लम विद व्हाट ही थिंक्स अबाउट, बट ही जेन्युइनली अप्रिशिएटेड। तो ये जो है, इसके लिए कैरेक्टर लगता है, ये नॉर्मल एनवियस आदमी के अंदर नहीं हो सकता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्ट ऑफ अस हैव अ क्रैब मेंटालिटी। What is a crab mentality? क्रैब को आप देखोगे, जो क्रैब एक्सपोर्ट करते हैं उनका एक स्पेशलिटी है, वो लोग जो उसका जो लिड रहता है कंटेनर्स में, वो लिड नहीं रखते हैं उसके। तो एक्सपोर्टर्स दे सेव millions of dollars every year simply by not having a lid on the containers when they are exporting crabs, because the crabs can't escape. एक क्रैब ऊपर उड़ने भागने का ट्राई करेगा, बाकी क्रैब उसको खींच के नीचे लेके आते हैं। तो एनवी मतलब क्रैब मेंटालिटी, एनीबडी इज ट्राइंग टू गो अप, वी पुल हिम डाउन। ये आपके ऑफिस में होता है ना, सबके ऑफिस में, सबको एग्जाम्पल्स याद आएगा अभी। एवरीवेयर दिस पॉलिटिक्स हैपन्स, समबडी इज गोइंग अप, वी ट्राई टू पुल हिम डाउन। मैंने एक बार राधा गोपीनाथ अपीयरेंस डे के दिन मेरे टेम्पल के क्लास में मैंने बोल दिया कि मैं 20 साल से आश्रम में हूँ, मैंने एक भी इंसिडेंट आश्रम के अंदर पॉलिटिक्स का नहीं देखा है। तो कोई भी विश्वास ही नहीं किया, मतलब बाहर के जो डिवोटीज बोला कैसे हो सकता है ऐसा,
मैंने कहा हाँ. They said प्रभु you must be naive. I said no, I have not seen politics. I have not seen politics. So it's very impossible for people to believe that there can be somewhere where there is no politics because it is so all pervading. इंडिया का नंबर 1 एंटरटेनमेंट पॉलिटिक्स है, सेकंड क्रिकेट है, थर्ड बॉलीवुड. तो अभी मैंने सुना कि पॉलिटिक्स और बॉलीवुड साथ में आ गया है, कुछ तो एक मूवी बन रहा है पॉलिटिक्स के ऊपर, तो फिर तो और लोगों का डबल एंटरटेनमेंट हो जाएगा. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट पॉलिटिक्स में फुल हमारा दिन रहता है अगर, वी कांट बिलीव दैट देयर इज अ प्लेस वेयर पीपल डोंट पुल यू डाउन. बट if we have to become attractive to Krishna, we have to overcome the crab mentality. इसीलिए श्रीमद् भागवतम में दूसरे श्लोक में बताया गया है. जैसे मैंने आज भगवद गीता का 9.1 क्या है, बिकम फ्री ऑफ एनवी. भागवतम में एक श्लोक आता है, धर्म प्रोजित कैतवत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम. श्रीमद् भागवतम महामुनि कृते किं वा परेरीश्वर सद्यो हृदयवरुद्ध तत्र कृतिभि शुश्रूस्तुभिस्तक्षणात्. कृतिभि, वेरी फास्ट you will get love of Krishna if you become nirmatsaranam satam, if you become free of envy. निर्मत्सर, मत्सर्य मतलब एनवी. मत्सर्य किससे आता है, मत्स्य से आता है. मत्स्य मतलब फिश. तो फिश का क्या स्पेशलिटी है, बिग फिश ऑलवेज ईट्स स्मॉल फिश. वो बड़ा होने के पहले उसको खा लो, बड़ा हो जाएगा तो फिर नहीं खा सकते. तो ये दुनिया का उसूल है, मात्सर्य, क्रैब मेंटालिटी. कोई बड़ा हो रहा है, मुझे मालूम है, जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको लग रहा होगा अरे ये भी ऐसा है वो भी ऐसा है, बट द आइडिया इज वी हैव टू सी. आईना जब भी उठाया करो पहले खुद को देखो फिर दिखाया करो. ये अभी इसके लिए नहीं बता रहे हैं कि अरे उसने भी मेरे साथ ऐसे, वो भी बड़ा फिश है, वो भी क्रैब है. नहीं, हाउ आई एम अ क्रैब समटाइम्स, हाउ आई एम अ फिश, दैट वी हैव टू सी. So we can't understand Bhagavatam, we can't understand Bhagavad Gita unless we develop this mood of wanting to become free from the crab and a fish mentality. इसीलिए हमारे चैतन्य महाप्रभु उन्होंने कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट स्टार्ट किया था 500 साल पहले. चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में जब उन्हें इतना एक्सचेंजेस है उनका, इतना पास टाइम्स है, वेरी हैज शोन हाउ डिवोटी मीन्स फ्री ऑफ एनवी. एक बार पुरी में दामोदर सब डिवोटी आते थे माया अपना नवद्वीप से, तो चैतन्य महाप्रभु खुद उनको वेलकम करते थे, उनको गार्लैंड पहनाते थे, उनको स्वागत करते थे. तो एक बार सबके सामने शंकर पंडित को वेलकम किया महाप्रभु ने, और सब डिवोटीज बैठे हैं और महाप्रभु बोल रहे हैं दामोदर पंडित के छोटे भाई शंकर पंडित है. तो महाप्रभु ने शंकर पंडित को एम्ब्रेस किया और कहा, दामोदर पंडित तुम तो मेरे बचपन के दोस्त हो, पर मैं सच कहता हूं, मुझे तुम्हारा जो भाई है शंकर पंडित, इसके प्रति ज्यादा प्रेम है. आई लव हिम मोर. और सारे डिवोटीज ने हरि बोल का, और दामोदर पंडित भी बहुत खुश हो गया. ऐसा नहीं बोला अरे मेरे को साइड कर दिया. ही बिकेम वेरी हैप्पी. उन्होंने कहा महाप्रभु आज से, ये मेरा छोटा भाई, मैं इसको समझता था मेरा छोटा भाई है, नालायक है, आज से मैं डिक्लेयर करता हूँ कि ये मेरा बड़ा भाई, और मैं इसे अभी इंस्ट्रक्शन लूँगा. वेरी हैप्पीली. इफ़ यू सी मोस्ट ऑफ द डिवोटीज का पास टाइम्स ऐसे ही है गौर लीला में. जैसे रूप सनातन जब पहली बार महाप्रभु को मिले, दे वर वेरी न्यू डिवोटीज, फर्स्ट टाइम दे आर मीटिंग लॉर्ड चैतन्य, और ऑलरेडी हरिदास ठाकुर, नित्यानंद प्रभु, सब सीनियर डिवोटीज खड़े हैं. महाप्रभु ने सबके सामने ये दोनों को सबके आगे बुलाया, सबके सामने एम्ब्रेस किया, इनको अप्रिशिएट किया. और बाकी लोगों को ये नहीं लगा कि अरे यार ये तो कल के बच्चे हैं, नए लोग हैं, हमसे आगे निकल गए. नो, दे वर वेरी हैप्पी. तो जब दोनों को कृपा मिला, दुई जनेर प्रभुर कृपा देखी भक्त गणे, दुई जने प्रभुर कृपा देखी भक्त गणे. सारे भक्तों ने देखा कि ये दोनों को भगवान की बहुत कृपा मिल रही है. दुई जने प्रभुर कृपा देखी भक्त गणे, हरि हरि बोले सब आनंदिता माने. सबने बड़े हरि बोलो जोर से कहा, और ऐसा नहीं कि फॉर्मेलिटी के लिए कहा, हरि हरि बोले सब आनंदिता मने, मन से इतने आनंद में. और अभी रूप सनातन ने ये नहीं सोचा देखो
महाप्रभु ने तो मुझे स्वीकार किया, बाकी लोग भी समझ रहे हैं कि हम लोग ग्रेट हैं, सबके सामने हमको वेलकम किया। नो, रूप सनातन इस भ्रम में नहीं गए कि हम लोग बहुत स्पेशल हैं, कि हमको सबके सामने बुलाया गया, सबके सामने हमारा सम्मान सत्कार हुआ और ये लोग भी मान रहे हैं कि हम लोग स्पेशल है। नो, वो लोग ने तुरंत, जब बाकी सब लोगों ने इनकी प्रशंसा की, रूप सनातन ने तुरंत उस रेस्पेक्ट को स्वीकार नहीं किया। हालांकि वो भाग के गए और सारे जो वैष्णव खड़े थे उनके चरणों में वो गिर गए। सबार चरणे पड़ी धरी दुई भाई, ये दोनों भाइयों ने क्या किया? सबारा चरणे धरी पड़े दुई भाई, ये दोनों के चरण कमलों को उन्होंने टाइट पकड़ लिया। सबार चरणे धरी पड़े दुई भाई, सब बोले धन्य तुम्ही पाई ले गोसाई। और बाकी सबने कहा कि अरे हमारा पैर क्यों छू रहे हो आप? अरे आप धन्य हो, आपको सबके पहले सबसे ज्यादा आपको मर्सी मिल रहा है। नन ऑफ देम फेल्ट एनवियस। और हमारा तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्क्रिप्चर है चैतन्य चरितामृत, उसका ऑथर कृष्णदास कविराज गोस्वामी पूरे बुक में यही लिखते रहते हैं कि आपको एक्चुअली महाप्रभु के बारे में जानना है ना, वो दूसरा बुक है, वो पढ़ो जो मेरे सीनियर ने लिखा है, वृंदावन दास ठाकुर। तो अपने बुक में दूसरे ऑथर को वो ग्लोरीफाई कर रहे हैं। ये आपको मटेरियल वर्ल्ड में किधर भी नहीं मिलेगा। तो अगर हमें भक्तों का समुदाय बनाना है, भक्तों का कम्युनिटी बनाना है, जब तक हम इसे इंटरनलाइज नहीं करेंगे तो कभी भक्ति में भगवान की कृपा को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। ये स्पिरिचुअल लाइफ मतलब ये, दूसरों को अधिक कृपा मिले, उससे अगर हमें आनंद आ जाए तो हमें उससे भी अधिक कृपा मिलेगा। जब रूप गोस्वामी को महाप्रभु, क्या हो गया, रूप गोस्वामी ने इतना बड़ा अचीवमेंट किया जो आज तक हमारे हिस्ट्री में किसी ने नहीं किया। चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा में डांस कर रहे हैं, गा रहे हैं, कृष्ण के विरह में राधा रानी को जो प्रेम है उसमें गा रहे हैं, और बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा है वो क्या बोल रहे हैं, पर रूप गोस्वामी को समझ में आता था क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और उसके वो परपोर्ट लिखते थे। जैसे एक बार रथ यात्रा में महाप्रभु ने ऐसे एक गाना, उस समय का फेमस बॉलीवुड गाना था 500 साल पहले का, तो महाप्रभु ने ऐसे ही गाना गाया कि यू आर द सेम लवर, आई एम द सेम बिलवेड, एंड दिस इज द सेम मूनलिट नाइट, द मंथ ऑफ चैत्रा, बट माई हार्ट इज नॉट हियर, लेट अस गो बैक टू द बैंक ऑफ रेवा। ऐसा करके एक पोएम है जिसमें वो प्रेमिका प्रेमी को कह रही है कि मैं आपसे प्रेम करती हूँ, हम दोनों वही हैं, वही रातें हैं, वही सुहानी रात, पर मेरा मन यहाँ नहीं लग रहा, हमें दूसरे जगह पे होना चाहिए, वो नदी के तट पर, उस पेड़ के नीचे होना चाहिए। ऐसा करके वो एक प्रेमिका अपने प्रेमी को याद करते हुए गा रही है, और उस समय का फेमस गाना था। तो महाप्रभु किस मूड में है? श्रीमती राधा रानी के मूड में, जो कृष्ण से विरह अनुभव कर रही है। तो जब महाप्रभु जगन्नाथ जी को देख रहे हैं रथ यात्रा में, वो ये देख रहे हैं जैसे गोपियाँ कृष्ण को देखती हैं कुरुक्षेत्र में। तो उस मूड में चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि कृष्णा, यू आर द सेम कृष्णा, आई एम द सेम राधा, बट आई एम नॉट हैप्पी हियर, वी शुड गो बैक टू वृंदावन, कम टू वृंदावन। ये द्वारका में कुरुक्षेत्र में मजा नहीं है आपके साथ, आप वृंदावन वाले कृष्ण। तो ये बोल नहीं रहे, उन्होंने ऐसे एक गाना गा दिया ऐसे ही, तो कुछ लोग बिल्डर हो गए सुन के। तो रूप गोस्वामी को मालूम था क्या बोल रहे हैं अंदर, उन्होंने उसके ऊपर एक कमेंट्री लिखा, एक श्लोक लिखा। वो श्लोक में उन्होंने लिखा कि मैं वही राधा हूं, आप कृष्ण हो, वो कहाँ यमुना है, कहाँ वो कदम का पेड़, ऐसा करके उन्होंने एक श्लोक लिखा। तो जब महाप्रभु ने वो श्लोक पढ़ लिया एक बार, महाप्रभु, अरे ये रूप गोस्वामी को मेरा दिल समझ गया, जो मेरे दिल की बात है इसने समझ लिया। तो महाप्रभु इतने खुश हो गए, बाकी लोग बिल्डर हो गए थे, बट ही अंडरस्टूड द हार्ट। ही वाज सो पावरफुल मैन, सच अ पावरफुल डिवोटी, बट एक्सट्रीमली हम्बल। अपने आप को हमेशा तुच्छ समझते थे और दूसरों की हमेशा प्रशंसा करते थे। सोचिए महाप्रभु कितना अच्छा लगा होगा अगर रथ यात्रा में ऐसा महाप्रभु गा रहे हैं, कोई ऐसा मुंडेन स्पिरिचुअल गाना नहीं था, वो उस समय का फेमस ऐसा कोई गाना था। जैसे आजकल कोई अगर लेक्चर में बोल दिया क्लास में बीच में कृष्ण के प्रति प्यार के लिए, और भक्ति में एक डिवोटी बोल रहा था एक बार, कितने संघर्ष है, कृष्ण के साथ प्यार करना इतना आसान नहीं है, ये बताने के लिए अगर किसी ने ये गाना गा दिया, प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं कहाँ मंजिल। तो ये इसका डबल मीनिंग है कि का भक्ति के मार्ग में कितना मुश्किल है रास्ता। ऐसा करके किसी ने कुछ ऐसा बोल दिया, गा दिया, तो क्या ऑडियंस क्या सोचेगा, अरे क्या हो गया प्रभु जी को बॉलीवुड के गाने गा रहे हैं, बहुत यूट्यूब देख रहे लगता है आजकल, क्या हो गया। वी गेट बिविल्डर्ड, राइट? इफ समबडी इज सिंगिंग अ बॉलीवुड सॉन्ग इंस्टेड ऑफ हरे कृष्णा,
तो महाप्रभु ऐसे ही गाना गा रहे हैं, और रूप गोस्वामी को समझ गया कि ये कृष्ण से विरह का अनुभव है। तो उन्होंने जो परपोट लिखा उसके ऊपर महाप्रभु इतने खुश हो गए, सबको बुला के बोल रहे थे, जानते हो रूप गोस्वामी को मेरा हृदय समझ गया। फिर उन्होंने स्वरूप दामोदर को बुला के कहा, मोरा अंतर वार्ता रूप मोरा अंतर वार्ता रूप जानिला के मोने। अरे मेरे हृदय के अंदर की बात कैसे समझ गया रूप गोस्वामी। मोरा अंतर वार्ता रूप जानिला के मोने, स्वरूप कहे जानी कृपा कोरियाच आपने। अरे आपने इसके ऊपर बहुत कृपा की है, इसीलिए उसको समझ गया। तो प्रभु ने कहा, हाँ यू आर राइट। प्रभु कहे यूं आमाय प्रयाग मिलीला, योग्य पात्र जानी मोरा यार कृपार्थ होइला। मुझे प्रयाग में मिला था ये रूप गोस्वामी, और मैं समझ गया कि ये बहुत योग्य व्यक्ति हैं, इसलिए मैंने उनको कृपा बरसाया। और क्या योग्यता दिखाई रूप गोस्वामी ने उधर वल्लभ भट्ट आए थे, और वल्लभ भट्ट ने देखा ये रूप गोस्वामी को इतने आकर्षक, इतने प्रभावशाली व्यक्ति हैं, वो भागकर उनको आलिंगन करने गए। रूप गोस्वामी ने कहा, नहीं नहीं नहीं, आप मेरे सामने मत आओ। अरे आप कहाँ बड़े पंडित हो, खड़े बड़े वैष्णव हो, मैं तो एक तुच्छ आदमी हूँ, मुझे आलिंगन मत करो, मुझे स्पर्श मत करो, आप प्रदूषित हो जाएंगे, आप कंटेमिनेट हो जाएंगे। नहीं बस बस बस, आप बस कृपा कीजिए मेरे ऊपर। तो वल्लभ भट्ट सरप्राइज हो गया, अरे इतने आकर्षक, इनके मुंह से हमेशा हरिनाम निकल रहा है, और ये बोल रहे हैं कि मैं तुच्छ हूँ, और बिविल्डर हो गया। और महाप्रभु ने और बिविल्डरमेंट कर दिया। महाप्रभु ने कहा, अरे वल्लभ भट्ट जी वो सही बोल रहे हैं, वो उनके सामने मत जाओ, वो तो लो क्लास है, आप कहाँ इतने बड़े ब्राह्मण, वो तो लो क्लास है, छोड़ो छोड़ो उनको छोड़ो। तो और बिविल्डर हो गया वल्लभ भट्ट, अरे ये तो महाप्रभु भी यही बोल रहे हैं और ये लोग भी ऐसे ही बोल रहे हैं। फिर उनको समझ गया, हाँ इंगिता भंगी जानी, उनको समझ गया कि ये चैतन्य महाप्रभु मुझे इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि मैं घमंडी हूँ, मुझे नम्र होना चाहिए। तो ऐसे करके वो बोल रहे हैं इनडायरेक्टली। कल्चर्ड लोगों में ना डायरेक्टली नहीं बोलते, इनडायरेक्टली ऐसा समझ जाता है समझने वाले को भी। So like that. So the point I'm trying to make is Rupa Goswami was extremely humble and non-envious, and that is why Lord Chaitanya, the heart was captured. So ये हमें डेवलप करना है। चैतन्य चरितामृत का जो कल्चर है, दैट इज अ कल्चर ऑफ एप्रिसिएशन, लव। तो आज हम डिस्कस करेंगे अभी थोड़े समय में कि ये जो एनवी है वो कैंसर है। व्हाट इज इट? कैंसर। तो कैंसर के 4 स्टेजेस होते हैं, नहीं? फर्स्ट लेवल में कैंसर क्योर होता है ना, सेकेंड लेवल में भी हो सकता है, थर्ड लेवल में बहुत डेंजर है, नहीं? बट फोर्थ स्टेज में वेरी वेरी डिफिकल्ट। सो वील डिस्कस द 4 स्टेजेस ऑफ कैंसर लाइक एनवी। थर्ड कैंटो में 29-30 चैप्टर लॉर्ड कपिल देव एक्सप्लेन्स दिस, एंड उसको हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। उसके बेसिस पे हमने पॉइंट्स बनाए, और भक्ति विज्ञान गोस्वामी महाराज ने भी इसके ऊपर काफ़ी डिटेल में समझाया है। तो वो चैप्टर्स में आप देखोगे कपिल देव कह रहे हैं एनवी को छोड़ना चाहिए, तभी कृष्ण प्रेम मिलेगा आपको। फिर नेक्स्ट श्लोक में बोल रहे हैं सो वन शुड नॉट हैव एनवी। तीसरे श्लोक में बोल रहे हैं सो एनवी इज मोस्ट डेंजरस। फिर फोर्थ श्लोक में बोल रहे हैं सो प्लीज गिव अप एनवी। अरे एक बार बोलो ना, बार बार क्यों बोल रहे हो? जैसे हमारा एक श्लोक है ना फेमस, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कलो नास्ते व गतिरन्यथा, हरि नाम हरि नाम हरि नाम। तो एक ही चीज़ को बार बार बोलता है, तो हमको लगता है कि क्यों बोल रहा है, कहीं टेप अटक जाता तो, मालूम पहले ज़माने में वो कैसेट आता था, वो अटक जाता तो वही आवाज़ आता था। तो आप देखोगे कपिल देव बोल रहे हैं एनवी नहीं रखना चाहिए, फिर वही चीज़ बोल रहे हैं डोंट, शुड नॉट बी एनवियस, यू शुड बी फ्री ऑफ एनवी, गिव अप एनवी। ये सब क्या है? वही चीज़ बार बार बोल रहे हैं। क्यों? वो 4 बार बोलते हैं वो चैप्टर में। तो हमारे वैष्णव जो आचार्य हैं, जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उन्होंने सब एनालाइज किया है कि जो 4 बार बोला है कपिल देव ने, इसीलिए बोला क्योंकि एनवी के 4 स्टेजेस हैं। तो अगर हम उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं फर्स्ट लेवल पे या सेकंड लेवल पे, तो हम उसको क्योर कर सकते हैं, उस एनवी को, उस कैंसर को। तो आज आपको मैं शेयर करूंगा, और नेक्स्ट क्लास में आई विल आस्क एनीबॉडी, यू शुड रिमेंबर दिस। फर्स्ट लेवल ऑफ एनवी जो है उसका नाम है अवज्ञा। अवज्ञा, अवज्ञा मतलब क्या लिखा है नीचे? आई एम सुपीरियर। अवज्ञा मतलब मैं अच्छा हूं, इनसे बेहतर मैं हूं। अवज्ञा जो संस्कृत वर्ड है, अव मतलब जो ऊपर से नीचे आता है ना, अवतार हम बोलते हैं ना, अवतार। अवतार मतलब जो ऊपर से नीचे आए। अवधूत जो इज वेरी बिग एंड ही इज ट्रांसेंडेंटल। सो अवज्ञा, ज्ञा मतलब जानना।
ज्ञात होना, जानना। अवज्ञा मतलब ये जानना कि मैं ऊपर हूं इससे। तो ये जो है बहुत डीप रूटेड है और ये कॉमन है। मोस्ट ऑफ द टाइम डीप विद इन आई थिंक आई एम बेटर देन हिम। इसे कहते हैं अवज्ञा। आई एम बेटर देन हिम। अरे ये तो कल आया है भक्ति में, ये तो मेरे से बहुत सीनियर है, पर मैं तो लास्ट लाइफ से डिवोटी हूं। I am superior to him. This is deep rooted. I have 108 reasons I can prove how I am better than him. ये कैसा है ना, बहुत सटल है, हम बोलते नहीं कभी, ये कभी बोलेंगे नहीं किसी को कि आई एम बेटर देन यू। बट दिस इज द फर्स्ट स्टेज। एनवी बिगिंस विद दिस फर्स्ट स्टेज। वी कैनॉट गो, द कैंसर आगे नहीं बढ़ेगा जब तक ये पहला ये नहीं आएगा, तो आगे जाएगा ही नहीं बीमारी। आई हैव टू बी सुपीरियर देन हिम टू फील एनवियस। आई एम बेटर देन हिम, वो पहला ही अंडरस्टैंडिंग ऐसे आता है, तो कैंसर ऐसा एंटर करता है। जैसे वृंदावन में एक प्रचलित कथा है, एक वहाँ के गुरु की, बाबा जी की, वृंदावन में। तो वहाँ के बाबा जी के पास एक शिष्य आए। उन्होंने कहा हमको दीक्षा दीजिए, मैं आपको गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बार बार रिफ्यूज़ किया, नहीं नहीं नहीं, आप योग्य नहीं हैं, आप जाओ 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 जाओ। तो छोड़ते रहे उसको। कहा नहीं नहीं, प्लीज़ प्लीज़ मुझे शेल्टर दीजिए, शेल्टर दीजिए। फिर गुरु ने कहा ठीक है, एक ही कंडीशन है, आपके पास एक हफ्ता है। एक हफ्ते में आप पूरे वृंदावन में, अभी एक हफ्ते में जितना रिसर्च करना है करो, एक व्यक्ति लेके आओ मेरे पास। एक हफ्ते के बाद वो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिससे आप हर कंडीशन में और हर प्रकार से आप उससे अच्छे हो, ऐसा होना चाहिए। अगर आपको कोई ऐसा एक व्यक्ति भी मिलेगा तो मैं आपको स्वीकार करूंगा जो आपसे पूरी तरह से निम्न हो। आप समझ रहे? somebody at least one person who is inferior to in all respects। तो उसने कहा बहुत इजी है, मैं तो लेके आऊंगा, आराम से लेके। पर वो सिंसियर भी था। तो घर गया, फिर उसने कहा अरे अच्छा है, मुझे एक ही आदमी को लेके आना है, एक चीज़ को, एक व्यक्ति को लेके आना है जिससे मैं पूरी तरह से अच्छा हूँ, तो मुझे दीक्षा मिल जाएगा। तो उसने कहा ठीक है। तो उसने एक आदमी को देखा, वो ऐसे बैठा था और वो ही वॉज रास्ते पे ऐसा साइड में वो शौच क्रिया कर रहा था। उसको देखा, बोला कितना लो क्लास आदमी है, अरे इसको कुछ तमीज़ नहीं है, कल्चर नहीं है, मैं तो इससे हर प्रकार से अच्छा हूँ। और अब तो मिल गया, उसको पकड़ लूँगा, नेक्स्ट संडे को जाना है तो मैं इसको लेके जाऊँगा, तो गुरुजी समझ जाएंगे कि मैं एक तो है जिससे अच्छा हूँ, तो मुझे दीक्षा मिल जाएगा। जैसे आगे गया थोड़ा, उसने सोचा अरे पर ये तो वृंदावन में रहता है, ये तो ब्रजवासी है, वृंदावन में रहना मतलब कितना पुण्य का बात है, और इसने कितना पुण्य किया होगा तभी तो वृंदावन में जन्म मिला इसको। मैं तो इससे बेहतर नहीं हूँ, तो इसे मैं नहीं ले जा सकता, फिर दूसरे को ढूंढना होगा। फिर जिसे भी ढूंढा था उसने देखा अरे ये सब तो ब्रजवासी है, मैं तो किसी से भी अच्छा नहीं हूँ, कोई होप नहीं है। फिर उसने गाय को देखा, बोला हाँ ये तो जानवर है, इससे तो मैं अच्छा हूँ। फिर थोड़ी देर बाद उसको विचार आया कि अरे गाय तो दूध देती है, और इस दूध के वजह से हम जी रहे हैं, और वो निस्वार्थ भाव से हमें देती है, इससे तो अच्छा नहीं हूँ मैं। फिर कुत्ते को देखा, फिर देखा, फिर बाद में उसको लगा नहीं यार कुत्ता तो बहुत वफादार है, मेरे अंदर इतनी वफादारी नहीं है। तो ऐसा वो कुछ भी किसी को भी देख रहा था, पूरे हफ्ते में उसको एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिससे वो अच्छा हो। तो एंड में लास्ट डे बोला अब तो मेरा दीक्षा नहीं होगा, मैं तो फेल हो गया। तो फिर उसने लास्ट डे सुबह वो अपना, सॉरी फॉर दिस वेरी ग्रोस एग्जाम्पल, प्लीज़ फॉरगिव मी, ही वॉज पासिंग स्टूल। तो टॉयलेट करने के बाद उसने वो टॉयलेट को देखा, अपना स्टूल को देखा, जो उसने मल विसर्जन किया उस मल को देखा। फिर उसने कहा हाँ इससे तो अच्छा मैं हूँ, एक चीज़ तो मुझे मिला जिससे मैं अच्छा हूँ, इसको मैं लेके जाता हूँ प्लास्टिक में डाल के और गुरुजी को बताऊंगा कि इससे अच्छा मैं हूँ। हाँ, ऑपरेशन सक्सेसफुल, प्रोजेक्ट सक्सेस। फिर जैसे वो उसको पैक करने वाला था, फिर उसको विचार आया अरे यार ये तो बहुत ही ऑर्गेनिक मैन्योर है। अगर ये अलग सब्जेक्ट है, अभी मेरे को चैलेंज मत करना उसके ऊपर। तो ये इससे तो बहुत फसल वसल अच्छा हो जाता है। अभी हमारे एक वाड़ा फार्म में तो हमने पूरा वो क्या क्या किया हमने उससे, ह्यूमन वेस्ट से। एक बार मेरे को अच्छा पपाया खिलाया था, टेस्टी, मैं पपाया खा रहा, बोला इतना स्वीट है। उसने कहा प्रोजी मालूम है पपाया कहाँ से आया? इसका पानी कहाँ से गया पता है आपको? मैं जब सुना तो मैं फिर थोड़ा टाइम लगा मुझे।
एनीवे तो ही दिस मैन अंडरस्टूड, अरे ये तो स्टूल भी अच्छा है, मेरे से तो अच्छा ही है, दूसरों को फायदा होगा। तो बोला इससे भी अच्छा नहीं, मेरा तो फेल हो गया, मेरे को तो अभी दीक्षा मिलेगा ही नहीं, क्या करूं, मुझे कोई तो चाहिए जिससे मैं अच्छा हूं इन ऑल रेस्पेक्ट्स। तभी उसने देखा उसका जो मल उसने विसर्जित किया था उसके अंदर उसको एक कीड़ा दिखा एक। उसने बोला हाँ ये कीड़ा है, बस इससे तो मैं अच्छा हूं, ये तो मल का कीड़ा है, स्टूल का कीड़ा है, इससे तो मैं अच्छा हूं, अभी तो मेरे को एक तो मिल गया। तो उसने संभाल के लिया उसको, बोला अभी मैं इसको ले जाऊंगा, बोलूंगा देखो गुरुजी इससे अच्छा हूं मैं, अभी मुझे दीक्षा दो। पर जैसे उसने उसे उठाया, अभी उसको मेडिसिन भी मालूम था, तो उसको मेडिसिन में उसने मेडिकल में पढ़ा था कि ये जो वर्म रहता है, ये जब पेट में रहता है उससे कुछ कुछ फायदा भी होता है। जैसे फॉर सम डिजीजेस विच ही रिमेंबर्ड, आई डोंट रिमेंबर नाउ, that worm is good. So he said, oh ये तो इससे भी मैं बेकार हूँ, बदतर हूँ। तो मैं तो फेल हो गया और टाइम निकल रहा था। फिर वो आ गया गुरुजी के पास, उसने कहा सॉरी गुरुजी मैं फेल हो गया, मुझे कोई भी नहीं मिला जिससे मैं अच्छा हूँ। तो गुरुजी ने कहा यू आर पास नाउ, एक्चुअली यू विल गेट दीक्षा। फिर उसको उन्होंने गुरुजी ने स्वीकार किया। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, जो प्योर डिवोशनल सर्विस हम इतना बात करते हैं, इतना लेक्चर देते हैं उसके ऊपर, प्योर डिवोशनल सर्विस ओनली बिगिंस व्हेन वी आर इन द प्लेटफॉर्म ऑफ सीइंग एवरीबडी एज बेटर देन मी। जब तक हम ये चेतना में नहीं आते तब तक हमारी शुद्ध भक्ति का आरंभ भी नहीं हुआ है। अभी अभी आप कहोगे प्रभु जी मैं तो पर हूँ फर्स्ट स्टेज में, मुझे लगता है कि मैं इससे अच्छा हूँ, इससे अच्छा हूँ। सी दिस इज फर्स्ट स्टेज जो है ना, वो एरोगेंस का स्टेज है, बट इट इज इनोसेंट एरोगेंस। मतलब मैं उसको, इट्स कैंसरस बट इट इज लिटिल, वो एरोगेंस है बट थोड़ा इनोसेंट है, क्योंकि वो बहुत नेचुरल है कंडीशन स्टेज में, टू थिंक आई एम बेटर देन एवरीवन और अदर्स और एटलीस्ट समबडी एल्स। बट it becomes second stage immediately. And when we forgive others, that forgiveness lacks depth because we have avagya, we have this feeling that I am superior to him. और इसका रिजल्ट क्या, अगर आपके अंदर ये है, अगर आपके अंदर ये कैंसर का फर्स्ट स्टेज है, देन इसका रिजल्ट क्या है, आई एम सुपीरियर देन हिम। इफ दिस इज द मूड आई हैव विच इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ एनवी, इन इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। तो दो चीज़ें होती है, ऐसा शास्त्र में लिखा है। एक है विडम्बना, विडम्बना मतलब डुप्लिसिटी, और दूसरा संकुचित भक्ति, मतलब वो जो कृपा है वो विड्रॉ हो जाता है भगवान का। मतलब जो हमारा जो एटीट्यूड है, दैट एटीट्यूड ब्लॉक्स द नेचुरल प्रोग्रेशन ऑफ भक्ति। मतलब वी बिकॉज वी आर हिपोक्रिटिकल, लाइक आई जेन्युइनली थिंक दैट आई एम सुपीरियर टू हिम, so I don't experience Krishna's mercy, that taste is not there, so then I don't get reciprocation from Krishna. तो मैं भक्ति कर रहा हूँ पर कृष्ण का अनुभव नहीं हो रहा है, तो फिर क्या करूँगा मैं? अगर कृष्ण का अनुभव नहीं हो रहा है भक्ति के कार्य से, तो फिर मैं भक्ति तो करूँगा पर बाकी चीज़ें ज़्यादा करूँगा। मतलब भक्ति में भी कैसा करूँगा, ऐसा कुछ करूँगा जिससे मुझे प्रशंसा मिले। जैसे अगर मैं ध्यान कर रहा हूँ, जपा कर रहा हूँ, ऐसा अटेंटिवली जपा कर रहा हूँ या लेक्चर दे रहा हूँ, तो अपने शुद्धिकरण के बजाय मैं ये सोचूंगा कि अरे मैं लेक्चर में अच्छा कुछ बोलूँगा तो लोग खुश हो जाएंगे, या मैं जपा अच्छे से करूँगा। तो अकेले में जपा नहीं होता है अच्छे से। आपने सी यू कैन नो दैट आई एम हैविंग अवज्ञा बाय आस्किंग योर सेल्फ हाउ यू चैंट व्हेन यू आर एलोन एंड हाउ यू चैंट व्हेन यू आर विद अदर डिवोटीज। सी व्हेन आई एम एलोन आई may fall asleep many times and I don't mind also, and I may even keep seeking a mobile when I'm chanting. ऐसा होता है ना, देखते रहते हैं, न्यूज़ भी देखते हैं, व्हाट्सएप भी देखते हैं और माला भी करते हैं, एक हाथ में माला और एक हाथ में व्हाट्सएप, राइट? बट व्हेन वी आर विद डिवोटीज एंड चैंटिंग, हाउ वी चैंट? हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। सब डिवोटीज साथ में कैसे बैठ के जप करते हैं? सिंसियर। वाई? अरे वो देखेगा। सो मेनी टाइम व्हाट हैपेंस, आवर भक्ति इज टू शो अदर्स दैट आई एम सिंसियर, आई एम गुड, आई एम नाइस, but actually there is a feeling of I am superior to him, so that hypocrisy enters our bhakti.
एंड वी डू द डिवोशनल सर्विस नॉट बिकॉज यू नॉट एक्सपीरियंसिंग कृष्णा, कृष्णा उसमें नहीं है, पर हमको कुछ तो टेस्ट चाहिए ना, सबको कुछ तो मजा तो चाहिए थोड़ा, तो विदाउट दैट कैसे रहेंगे हम? तो हम क्या करते हैं, फिर बाकी चीज़ों में ज़्यादा फोकस करते हैं, क्या करने से मुझे प्रशंसा मिलेगा, क्या करने से मुझे पोजीशन, रिस्पेक्ट, और उसके क्या होता है, फिर उससे हमारा हिपोक्रेसी बढ़ जाता है, और जब हिपोक्रेसी बढ़ जाता है फिर और टेस्ट कम होता है ना, भगवान टेस्ट विड्रॉ करते हैं, तो टेस्ट विड्रॉ करते हैं, फिर हम और वो एक्टिविटीज और करते हैं। आप समझ रहे हो क्या हो रहा है, विशेष साइकिल में हम फंसते जाते हैं। तो हमारा सुपीरियरिटी फीलिंग है, उसकी वजह से भक्ति संकुचित हो गई है, उसकी वजह से हम अन्य इच्छाओं से भक्ति करते हैं, और फिर वो इन इच्छाओं के कारण और टेस्ट चला जाता है, फिर और हिपोक्रेसी करते हैं। ऐसा करके हम एक बड़े जाल में फंस जाते हैं, और दूसरा जो कैंसर का दूसरा स्टेज है उसको एंटर कर देते हैं। सो बट एक्चुअली वन गुड न्यूज़ इज दिस कैंसर कैन बी क्योर्ड एट दिस स्टेज। ये फर्स्ट स्टेज है, और एट दिस स्टेज वी कैन क्योर दिस कैंसर। ईजी है, और क्या सोल्यूशन है? सिंपल, कम इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, हियर एंड सर्व। जैसे अभी आप सुन रहे हैं, सुनते सुनते क्या होता है, मालूम तो पड़ा क्या ऐसा भी है तो उससे थोड़ा एक अवेयरनेस आता है। एंड व्हेन वी सर्व प्रसादम, व्हेन वी सर्व डिवोटीज, वी डू सेवा, वी गेट प्यूरिफाइड। देयरफॉर अवज्ञा का जो स्टेज है कैंसर का ऑफ एनवी, इट इज़ ईजिली क्योरेबल। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज in this stage is to consciously see others as better than me by appreciating them regularly and by genuinely and appreciating भी कैसा, आप सामने आए, आपको ग्लोरीफाई करना थोड़ा आसान है, आप उधर गए और आपके पीछे उनके बारे में अप्रिशिएट करना। आप देखें दुनिया में ऐसा बहुत कम करते हैं हम लोग, सामने अप्रिशिएट करते हैं, वो जाता है तो उसकी निंदा करते हैं, है ना? तो दिस इज जनरली वी डू। ये फ्लैटरी ऐसा होता है, फ्लैटरी कैसा होता है, सामने हम अप्रिशिएट करते हैं, तो सामने हम वो बोलते हैं जो पीछे नहीं बोल सकते, उसे फ्लैटरी कहते हैं। एंड बैक बाइटिंग, क्रिटिसिज्म, वो क्या है, जो एनवियस रहते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो आपके सामने जब आप आओगे, they will never tell you what they tell behind your back। आपके सामने वो कभी नहीं बोलेंगे जो आपके पीछे बोलते हैं। और फ्लैटरी क्या है, आपके सामने वो सब बोलेंगे जो आपके पीछे नहीं बोलेंगे। आप समझ रहे हैं क्या डिफरेंस है फ्लैटरी और एनवी में? सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सो I want to spend some time on avagya because avagya is the most first stage of cancer। अगर कैंसर को पहले क्योर कर दिया तो फिर आगे का प्रॉब्लम नहीं आएगा। So one of the most important things to do at this stage is we have to move from non-devotional life होता है, ठीक है, जहाँ पे हम मटीरियलिस्टिक पूरा रहते हैं, और एक है शुद्ध भक्ति का जीवन। ये जो जर्नी है नॉन डिवोशनल से शुद्ध भक्ति का, जो जर्नी है, बीच में एक स्टेज आता है, हमें वो स्टेज में आना है। अगर वहाँ पे आएंगे तो हम शुद्ध भक्ति में जा सकते हैं, और वो स्टेज का, दैट स्टेज इज अ स्टेज ऑफ सिंसियरिटी। नॉन डिवोशनल कैसा है, नॉन डिवोशनल और प्योर डिवोशनल के बीच में सिंसियरिटी आता है। लाइक नॉन डिवोशनल में कैसा है, एनवी है पूरा, ठीक है, एनवी। और प्योर डिवोशनल सर्विस में क्या है, प्योर लव। बीच में हमें आना है एनवी से, और बिकॉज एनवी से डायरेक्टली वी कांट कम टू स्टेज ऑफ लविंग एवरीवन, एटलीस्ट वी कैन बिकम सिंसियर। एंड सिंसियरिटी इज शोन बाय अप्रिशिएटिंग जेन्युइनली अदर्स, जेन्युइनली ग्लोरीफाइंग देम, एक्सप्रेसिंग ग्रैटिट्यूड। और अप्रिसिएशन भी कैसा है, वो 3 लेवल का होता है। ग्रैटिट्यूड, जब हम ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं जनरली अपने लिए एक्सप्रेस करते हैं, प्रभु जी आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, थैंक यू प्रभु जी, आपने मेरे लिए प्रसाद बनाया, थैंक यू प्रभु जी आपने मुझे ये दिया। मेरा सेंटर ही रहता है, जब भी मैं ग्रैटिट्यूड भी एक्सप्रेस करता हूँ तो मेरे रिलेशन में ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करता हूँ, तो उसमें हम थोड़ा ऊपर जा सकते हैं। हम किसी को अप्रिशिएट कर सकते हैं इवन फॉर वॉट ही इज और वॉट ही हैज़ डन, इंडिपेंडेंट ऑफ मी। अरे मैं दुनिया का सेंटर नहीं हूँ, आपने कुछ अच्छा किया है दूसरे के लिए, उसके लिए अप्रिशिएट हमें उसी खुशी से अगर हम कर रहे हैं, मतलब हम थोड़ा एडवांस कर रहे हैं।
और उससे भी अच्छा, इफ यू कैन एक्चुअली सी कृष्णा एलिमेंट देयर, इफ यू कैन एक्चुअली रिमेंबर कृष्णा विद ग्रेटिट्यूड फॉर व्हाट ही इज डूइंग, दैट इज इवन ग्रेट. एंड दैट इज व्हेन यू विल फाइंड ग्लोरिफिकेशन ऑफ कृष्णा वेरी अट्रैक्टिव. अभी हमको ना कृष्ण का जो ग्लोरिफिकेशन होता है उसमें नींद आता है. आपने कभी एक्सपीरियंस किया है? इफ आई स्पीक अक्रूरस प्रेयर्स टू कृष्णा, he says, Krishna, you are beyond the three modes of nature. You are the most attractive supreme personality of Godhead. Everything comes from you. If you simply glorify Krishna like this, Krishna's glories, you fall asleep. When we hear only Krishna's glories, we don't find it so attractive. अगर आपके बारे में बोलेंगे, आज प्रभु जी के बारे में हम बोलने वाले हैं, ग्लोरीज, सब लोग ध्यान से सुनिए. सब लोग सुने या ना सुने, वो तो ध्यान से सुनेगा. नहीं, अरे मेरे बारे में बोल रहे हैं, वाह. बट सेम ग्लोरिफिकेशन इफ इट इज ऑफ कृष्णा, आई फॉल अस्लीप. बट द डे वी फाइंड, द डे वी आर फ्री ऑफ एनवी, इज द डे वी विल सी दैट वी एक्चुअली लव टू हियर अबाउट कृष्णा. एंड इफ जो प्रेयर्स हम प्रेयर्स करते हैं ना, प्रेयर्स में अलग अलग इंग्रेडिएंट्स होते हैं. एक होता है भगवान का प्रेज, एक होता है भगवान को थैंक यू बोलना, तीसरा होता है भगवान से फॉरगिवनेस मांगना, और फोर्थ फाइनल होता है भगवान से कुछ मांगना, लाइक ये चाहिए मुझे, ये चाहिए, वॉट एवर. तो हम कितनी बार भगवान को जब सामने जाते हैं, प्रे करते हैं, तो कितनी बार हमने प्रेज किया है भगवान को? हाउ मेनी टाइम्स यू हैव कम इन फ्रंट ऑफ द लॉर्ड एंड बिफोर आस्किंग, हाउ मेनी टाइम्स यू हैव प्रेज्ड कृष्णा, यू आर सो नाइस, कृष्णा यू आर सो वंडरफुल, कृष्णा यू प्ले विद योर कवर्ड बॉयफ्रेंड्स, यू आर इन वृंदावन. हाउ मेनी टाइम्स हैव यू ग्लोरिफाइड कृष्णा? इट्स वेरी डिफिकल्ट, राइट? So therefore let us begin. Let us वो प्योर डिवोशनल सर्विस है, ठीक है. नॉन डिवोशनल में क्या है? आई और कृष्णा के बीच में कौन है? सिंसियरिटी इज एक्सप्रेस बाय अप्रिशिएटिंग कृष्णाज डिवोटीज. सो डिवोटीज आते हैं. जैसे ये नॉन डिवोशनल लाइफ में सेल्फिशनेस आता है. ऑल ऑफ यू एग्री? इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट प्योर डिवोशनल सर्विस में आता है. वो क्या है? सेल्फलेस सर्विस. जो प्योर डिवोटी है वो केवल सेल्फलेस रहता है. आप वो सुनते तो आपको स्ट्रेस आता है, अरे ऐसा कैसे कोई हो सकता है? क्योंकि मैं किधर हूं? व्हाट इज दैट? सेल्फलेस का पूरा उल्टा सेल्फिश. तो सेल्फिश और सेल्फलेस के बीच में भी कुछ है. सिंसियरिटी हियर मीन्स व्हाट? एटलीस्ट बीइंग सेंसिटिव टू अदर्स नीड्स एंड टेक. सी, सेल्फ केयर इज नॉट बैड, सेल्फ केयर इज नीडेड, बट हमारा सेल्फ केयर सेल्फिशनेस बन जाता है. बट वेन देर इज सेंसिटिविटी, वेन वी आर सेंसिटिव टू अदर्स नीड, अरे वो भी एक इंसान है, उसके भी कुछ चीज़ें हैं, ज़रूरतें हैं. एंड वेन वी आर सेंसिटिव टू अदर्स, वी आर शोइंग एंड प्रूविंग अवर सिंसियरिटी टू कृष्णा. तो हमारा जो एनवियस वाला स्टेज है, कैंसरस स्टेज से क्योर होने का जर्नी शुरू हो गया. So that is very important. So from selfishness, before coming to selflessness, what is there? Sensitivity. And you know, like non-devotional life में एक क्वालिटी है हिपोक्रेसी. जानते हैं हिपोक्रेसी? हिपोक्रेसी इज वेरी रैम्पेंट. हिपोक्रेसी का पूरा ऑपोजिट क्या है प्योर डिवोशनल सर्विस में? इंटीग्रिटी. इंटीग्रिटी मतलब, हिपोक्रेसी मतलब एक बोलना एक, करना दूसरा. इंटीग्रिटी मतलब जो बोला वो किया. वचन दिया है मैंने, मैं 4 नियम पालन करूंगा, तो कुछ भी होगा वो पालन करेगा, वो इंटीग्रिटी है. हिपोक्रेसी क्या है? वचन देगा करूंगा पर करेगा ही नहीं, वो हिपोक्रेसी. तो हमारा अभी जीवन हिपोक्रेसी में है, हमको इंटीग्रिटी के उधर आना है. तो अभी होपलेस नहीं है, बीच में आ सकते हैं सिंसियरिटी के स्पेस में. सिंसियरिटी के स्पेस में क्या होता है? हिपोक्रेसी और इंटीग्रिटी के बीच में क्या आता है? ऑनेस्टी. ऑनेस्टी मीन्स व्हाट? इंटीग्रिटी मीन्स टू से, टू डू व्हाट यू से. ऑनेस्टी मीन्स टू से व्हाट यू डू. देखो मैं ये नहीं कर पाया, मुझे करना है. एटलीस्ट दैट ऑनेस्टी, ऑनेस्ट एक्सेप्टेंस इज अ बिगिनिंग टुवर्ड्स इंटीग्रिटी. सो आई एम नॉट सेइंग यू शुड बी शेमलेस, बट ऑनेस्टी मीन्स, सी समटाइम्स पीपल से हाँ मैं तो ऑनेस्ट हूँ प्रभु जी, मैं तो ऐसे हूँ, मैं सुधर ही नहीं सकता. दैट इज नॉट ऑनेस्टी, दैट इज शेमलेस. Honesty means to know where you are, but not remain where you are. That is honesty. I am honest means I know I am at this level, which is very bad, but I don't want to remain here. I want to improve. That is honesty. Like for example, अभी non-devotional life में judgment, always judging others. आज टाइम मिला तो हम जजमेंट के ऊपर भी डिस्कस करेंगे. जजमेंट, ये ऐसा है, वो कंजूस है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये दुश्मन है. ऑलवेज जजिंग. और प्योर डिवोशनल सर्विस में क्या है मूड?
एक्सेप्टेंस, लव, अरे सब गलतियों को माफ, प्रेम से स्वीकार करना। अरे तो अभी हमसे नहीं होता वो, पर ये बहुत इजीली होता है जजमेंट। जजमेंट से प्योर लव जाने के लिए बीच में जो सिंसियरिटी का स्पेस है, उसमें हमें क्या प्रैक्टिस करना है? अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंड द पर्सन, लिसन टू व्हाट ही इज सेइंग। You may realize your judgment will go away. Most of the time we don't understand what other we want to be understood, but I don't want to understand. नॉन डिवोशनल लाइफ में envious, प्योर डिवोशनल सर्विस में प्योर लव, और इसमें जो है सिंसेरिटी। सिमिलरली यहां पे जजमेंट है, जजमेंट और एक्सेप्टेंस के बीच में क्या आता है? अंडरस्टैंडिंग। हिपोक्रेसी का ऑपोजिट क्या है? और उसके बीच में क्या आता है? ऑनेस्टी। सेल्फिशनेस का ऑपोजिट क्या है? और उसके बीच में क्या आता है? सेंसिटिविटी। सो कांट वी ऑल प्रैक्टिस दिस प्रिंसिपल्स? कांट वी बी सेंसिटिव टू अदर्स? कांट वी अंडरस्टैंड व्हाट दे आर गोइंग थ्रू, इवन दो वी आर जजिंग देम, इवन दो वी हैव envy in our heart, but we can always and even if we can't have a high level of integrity, at least we can have honesty. And even if we are not Krishna conscious, at least we can be conscious of other devotees, appreciate them. If we can't praise Krishna, we should at least be able to praise other devotees. So these are all doable actions, doable things, and these are positive steps that we can take to remove the cancer from its very root. ये फर्स्ट स्टेज से ही कैंसर निकल सकता है अगर हम ये सब प्रैक्टिसेस करेंगे। जैसे मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मेरे एक दोस्त हैं, अभी वो प्रीचिंग से आ रहे थे, मुझे बैठा था उनके साथ, 5 घंटा हम लोग बात कर रहे थे। बात करते 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 तो उन्होंने एक डिवोटी के, दूसरे डिवोटी के बारे में बताया कि कैसे वो डिवोटी थोड़ा कुछ गलत कर रहे हैं, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए ऐसा। तो मुझे थोड़ा ऐसा अजीब लगा, ये क्या बोल रहे हैं ऐसा, मुझे लगा निंदा कर रहे हैं, पर मैंने कुछ कहा नहीं क्योंकि मैं आई वांटेड टू अंडरस्टैंड हिम। क्या ये ऐसे कैसे क्रिटिसाइज कर सकते हैं उनको? अब यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? आई एम टॉकिंग टू सेकंड डिवोटी, वन आई एंड अनदर डिवोटी आर टॉकिंग अबाउट अ थर्ड डिवोटी, एंड द सेकंड डिवोटी इज स्टार्टेड टेलिंग नेगेटिव एंड लिटिल मोर, और ऐसे एग्जाम्पल्स बोलने लगे कि मुझे लगा कि ऐसे कैसे बोल रहे हैं एग्जाम्पल्स, पर मैं भी रोक नहीं पाया क्योंकि मुझे लगा शायद कुछ उनके डीप जज्बात हैं, फीलिंग्स हैं, लेट मी अंडरस्टैंड। और बीच में सडनली वो डिवोटी ने कहा, प्रभु आई एम सॉरी, मैंने ऐसे सब बोल दिया, एक्चुअली मैं सच बोलूँ तो मेरे अंदर एनवी है एंड आई एम वर्किंग ऑन इट, प्लीज़ प्रे फॉर मी। बस 2 लाइन उन्होंने बोला, मैं समझ गया कितना सिंसियरिटी था उसमें, एक अवेयरनेस था। द मोमेंट वी जेन्युइनली एक्सेप्ट आई हैव एनवी, एक्चुअली वी आर प्रैक्टिसिंग सिंसियरिटी, एंड दैट हेल्प्स अस बिकम सेंसिटिव, दैट हेल्प्स अस बिकम ऑनेस्ट, इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड अदर्स। So is it okay? First stage of cancer is what? Avagya means I am better than him. वो कैंसर आगे जाता है दूसरे स्टेज में, अगर हमने उसको चेक नहीं किया तो कैंसर आगे बढ़ता है और सेकेंड स्टेज में आता है, और सेकेंड स्टेज का कैंसर इज कॉल्ड उपेक्षा। उपेक्षा, उपेक्षा मीन्स निग्लेक्ट, सिंपल लैंग्वेज में। व्हाट इज उपेक्षा? I can't stand him. अभी फर्स्ट स्टेज में क्या है? I am superior to. सेकेंड में क्या है? आप डिफरेंस देख रहे हो? फर्स्ट स्टेज में कैसा है मालूम है? फर्स्ट स्टेज में आई एम सुपीरियर टू हिम एंड आई कैन स्टैंड हिम, इनफैक्ट आई मे वॉन्ट टू बी विद हिम। इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ एनवी, एक्सटर्नली आई मे स्माइल, externally I may be even helpful, so that's why I said it is innocent arrogance. पर अभी आप देख रहे हो कैसे कैंसर बढ़ रहा है, इसमें envy is stronger। कैसे स्ट्रांग? वो प्रभु जी सामने से आएंगे, आप यहाँ से जा रहे हो, जैसे आपने उसको देखा, क्या करोगे? नहीं, मोबाइल निकालेंगे, हाँ हाँ कुछ बात करेंगे और निकल जाएंगे सेट से। दिस इज अ क्लासिक केस ऑफ एनवी इन द सेकेंड स्टेज। उपेक्षा, उपेक्षा मतलब निग्लेक्ट। अवज्ञा में निग्लेक्ट नहीं है शायद। अभी भी एक अच्छा चीज है इसमें, यू आर नॉट हार्मिंग हिम, तो आप अपने आप को वो तो कर सकते कि मैं हार्म तो नहीं कर रहा हूं, पर है वो कैंसर है, आपका टेस्ट बता रहा है, स्क्रिप्चर्स बता रहा है वो कैंसर है। इट्स जस्ट दैट यू डोंट वांट टू सी हिम, सामने नहीं देखना चाहिए, अरे यार, बिकॉज आई एम इंटरनली कन्विंस्ड आई एम बेटर,
And I'm now internally convinced that I am devotee, he is not devotee. If he is here, I will not come. उसको अफ्रीका भेज दो, हम दोनों एक ही जगह पे नहीं रहेंगे, वो इधर रहेगा तो मैं उधर चला जाऊंगा. तो बेसिकली ये बहुत इंटेंस हो जाता है. और इसका भी रिजल्ट बताया है स्क्रिप्चर्स में. इसका रिजल्ट है बेसिकली जीरो रिजल्ट. द रिजल्ट इज यू डू भक्ति बट यू डोंट गेट एनी बेनिफिट. मतलब वो भागवतम में कपिल देव कहते हैं, इज अ स्टूपिड पर्सन हु पुट्स घी इनटू एशेस. घी को अगर आप राख में डाल दोगे तो आग उसमें प्रज्वलित होगी. फायर, यू आर बर्निंग फायर, एंड फायर में आप और घी डालेंगे तो फायर बढ़ेगा. और उसमें अगर पानी डाल देंगे फायर के ऊपर तो क्या होगा? इट विल ऑल गेट डिस्टिंग्विश्ड. So the scriptures explain that if we have upeksha, then it is like we are doing bhakti, but it's not getting benefits. फिर वो कैंसर बढ़ता है और तीसरे स्तर पर आता है. And the third stage of cancer is called द्वेष. द्वेष मतलब I hate him, active hate. मतलब यू रियली वॉन्ट बैड टू हैपन टू. सो पहले अवज्ञा में क्या था? आई एम बेटर देन हिम. उपेक्षा में आई कांट स्टैंड. और द्वेष में आई हेट हिम. मतलब आई हैव नो पीस. यू रियली विश उसको कुछ तो थोड़ा. और कैसे आपका माइंड जस्टिफाई करता है मालूम है? अरे बहुत सक्सेसफुल हो रहा है वो, थोड़ा उसको मिस्टेक होगा तो उसके लिए अच्छा है, थोड़ा वो हम्बल होगा. ऐसा हम सोचते हैं. और बिलीव इट और नॉट, समटाइम्स इवन प्रे उसको थोड़ा नहीं. मैं थिंक अरे ऐसे कैसे ऐसा होता है. यू प्रे दैट अरे थोड़ा उसको हम्बल बना दो भगवान, थोड़ा उसके लिए अच्छा है. और इसका रिजल्ट है नो पीस. दिस इज सेपरेटिस्ट मेंटालिटी. जीव गोस्वामी सेज इट मीन्स यू डोंट फील फॉर अदर सफरिंग. ये जो स्टेज में जब आदमी आता है, द्वेष के स्तर पर आता है, तो आपको दूसरों की पीड़ाओं पर दुख नहीं होता. अगर आप देख रहे हो कि उसको तकलीफ हो रहा है, यू डोंट फील द पेन ऑफ हिम. दैट इज अ साइन ऑफ दिस स्टेज. लाइक जो फर्स्ट 2 स्टेजेस है उसमें वो कैंसर ऑफ एनवी को कंट्रोल किया जा सकता है. पर जब कैंसर ये स्टेज में आता है तो बहुत फास्ट स्प्रेड होने लगता है और उसको रोकना मुश्किल हो जाता है. और इस स्तर पर भक्ति का प्रैक्टिस नहीं होता. And finally the cancer spreads to the 4th stage, and it is very very dangerous at this stage. It is called निंदा. निंदा मतलब एक्टिवली मैनिफेस्ट हो गया. जहाँ पे आप इंटरनेट में गाली गलौज कर रहे हैं, उसको सामने गाली दे रहे हैं, मुंह पे उसको मार रहे हैं, या जो बेसिकली इट इज हैपनिंग, इट्स एक्सटर्नली कम आउट इन फुल फ्लेज फ्लो. एंड द रिजल्ट ऑफ दिस इज लॉर्ड इज टोटली डिस्प्लीज्ड. कृष्णा इज अनहैप्पी विद यू. एंड विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एग्जाम्पल देते हैं भागवतम के 11वें कैंटो का जो परपोर्ट से, कि एरो अगर शूट किया, एरो आके आपको सीधा बॉडी को पेन करेगा तो 3 दिन तक पेन रहेगा, ऐसा वो श्लोक में लिखा है. बट किसी ने आपकी निंदा की, किसी ने आपको अटैक किया, वो जो पेन है जो आपने सुना वो जिंदगी भर रहता है. और कभी कभी मरते समय भी वो याद आता है. वो दुख, मर रहा है आदमी फिर भी बोलता है उसने मुझे ऐसा बोला था. मतलब इट्स कैन बी सो डेडली. Even at death we remember how we have gone through hurt. Therefore forgiveness is also important. That's why we will discuss. This seminar is not complete without the third topic. But at least we should not be the perpetrator of this. जैसे आपको मालूम है महाभारत में कथा आती है, पर ये एनवी का नहीं है, पर ये कनेक्टेड है. द्रौपदी ने दुर्योधन को क्या बोला था? अंधे का बेटा अंधा. वो आपको पता है स्टोरी है. वो अच्छा पैलेस था दुर्योधन का, और एक्चुअली वो बोलने वाली थी, तब युधिष्ठिर को समझ गया कि अब ये मस्त कमेंट मारने वाली. तो युधिष्ठिर ने द्रौपदी को रोका एक्चुअली. तो जब युधिष्ठिर ने द्रौपदी को रोका तो कृष्ण उधर ही थे. कृष्णा वॉज वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ द्रौपदी. तो कृष्ण ने क्या किया, युधिष्ठिर महाराज को देख के और द्रौपदी को देख के ऐसा विंक किया. तो नहीं बोलने दो, उसको बोलने दो. कृष्ण का एक अलग प्लान था. कृष्णा वांटेड, सो इट इज नॉट एनवी, इट इज अ पास टाइम विच वॉज ऑर्केस्ट्रेटेड बाय हु? कृष्णा. बट आई एम जस्ट टेलिंग द एग्जाम्पल. वो स्टेटमेंट सुन के क्या हो गया? डेडली नो.
अंधे का बेटा अंधा सुन के फिर दुर्योधन का कैसा हो गया? तो अपना जो वर्ड्स है, वी डोंट रियलाइज मेनी टाइम्स, एंड इट्स एक्चुअली मैनिफेस्टेशन ऑफ एनवी, एंड इट कैन डिस्ट्रॉय. Therefore, these are the four. We'll discuss the solutions now. Without the solutions, it is incomplete. But what are the four stages of envy? We'll summarize. If you have, yeah. First stage of cancer is called avagya. Avagya means I am superior to him. Second stage of cancer, upeksha means I can't stand him. Third stage of cancer, dvesha means hate him. And fourth stage of cancer, ninda. I will destroy him. नाउ सोल्यूशन जो हमने पहले डिस्कस किया, फर्स्ट सोल्यूशन इज हियर, अंडरस्टैंड एंड अप्लाई. जैसे भक्तिविनोद ठाकुर अपने जयधर्मा और हरिनाम चिंतामणि में भी लिखते हैं कि जो अनर्थास, अलग अलग अनर्थास उन्होंने एनालाइज किया है. फिर उन्होंने कहा कि एक जो अनर्थ है, इट इज़ कॉल्ड तत्व विभ्रमा. सत्य को नहीं जानना, जो सही गलत क्या है उसको नहीं जानना, वो भी एक अनर्थ है. और उसके अंदर एक अनर्थ है तद विषय विरोधी भ्रमा. मतलब जो हमारे भक्ति के लिए प्रतिकूल है, जो अनुकूल नहीं है, उनके बारे में नहीं जानना, ये भी एक अनर्थ है. मतलब ये सब टॉपिक्स को नहीं जानना, ये भी एक बहुत बड़ा गलती है. मतलब वी हैव टू नो व्हाट आर अनर्थस. क्योंकि क्या होता है, अगर हमें ये सब मालूम नहीं होगा तो हम अज्ञान में रहेंगे. जब हम अज्ञान में रहते हैं तो हृदय में असत तृष्णा उत्पन्न होती है. मतलब जो टेम्परेरी चीज़ों के प्रति अट्रैक्शन डेवलप होता है. और जब असत तृष्णा हृदय में उत्पन्न होती है तो हृदय दौर्बल्य हो जाता है, वीकनेस ऑफ द हार्ट आता है. और जब वीकनेस ऑफ द हार्ट आता है तो अपराध होता है. और अपराध जब होने लगता है तो फिर कुटिनाटी, डुप्लिसिटी, मात्सर्य, वो सब अलग अलग चीज़ें, जो वायलेंस जब सब होता है वो बाद में आता है. फर्स्ट कम्स वी डोंट नो ऑल्सो व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग. देयरफॉर हियरिंग इज फर्स्ट. इंपॉर्टेंस ऑफ हियरिंग कैन नेवर बी अंडर एस्टिमेटेड. बट अलॉन्ग विद हियरिंग वी हैव टू ऑल्सो understand. See the three words, I'm happy you put these three words, hear, then understand. इसका मतलब क्या है? अवज्ञा तो सुन लिया, but what does it mean? We have to go deeper and understand. तो understand भी हो गया. फिर third is what? apply means मेरे लाइफ में कैसे एप्लीकेबल है. ये कौन बताएगा आपको? मैं बताऊंगा? आपको खुद देखना है मिरर. जैसे हम लोग स्कूल में थे तो हमारी टीचर हमको इंग्लिश टीचर बोलती थी, टुडे वी विल लर्न अ न्यू वर्ड, पेटुलेंट. पेटुलेंट. तो आई वॉज वेरी क्यूरियस, बिकॉज आई यूज्ड टू लाइक इंग्लिश लैंग्वेज, ऑल्दो माई इंग्लिश वाज दैट टाइम वाज नॉट गुड, बट एटलीस्ट आई यूज्ड टू बी अट्रैक्टेड टू दिस वर्ड्स. पेटुलेंट, oh it sounds nice. But then the teacher would say, petulant means when you're not respectful towards others, you have an attitude of disrespect, समझ गया. फिर वो खत्म नहीं हुआ एक्सरसाइज. फिर मैडम बोलती थी, ओके नाउ राइट अ सेंटेंस. Then we used to write, okay, seeing the student's petulant behavior, the teacher called for his parents. Good sentence. So when you learned how to apply that word after understanding the meaning in a sentence, then your understanding is complete. Therefore, envy का जो first step of solution जो हम बोलते हैं, it is to hear, then understand and then apply. जैसे उसको कहते हैं शास्त्र में श्रवणम, मननम और निदिध्यासनम. श्रवणम मतलब सुनना, मननम मतलब अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन्स, एंड देन मननम के बाद निदिध्यासनम मीन्स डीपर कॉन्टेम्पलेशन ऑन हाउ इट अप्लाइज इन माई लाइफ. तो एनवी आपने सुना, आज क्या सुना? 4 स्टेजेस ऑफ एनवी. तो ये आपने क्या किया? श्रवणम किया, हियरिंग हो गया. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस 4 स्टेजेस मीन. यू हैव टू रिपीट इट टू योर सेल्फ, एंड व्हेन यू रिपीट इट सफिशिएंटली टू योर सेल्फ इन डिफरेंट वर्ड्स देन व्हाट आई स्पोक, देन यू हैव अंडरस्टूड इट. And after understanding it, then you ask yourself. थोड़ा होमवर्क आपको करना है. ये फर्स्ट सोल्यूशन. इज दैट ओके? दिस इज व्हाट वी डिस्कस्ड एज अ सोल्यूशन फॉर द फर्स्ट स्टेज ऑल्सो. नाउ देयर इज सम वेरी इंटरेस्टिंग सोल्यूशन फॉर एनवी एट वॉट एवर स्टेज यू आर इन. सम होप इज देयर. नाउ इसके लिए थोड़ा आपको ध्यान से सुनना होगा. सोल्यूशन बहुत सिंपल है, पर आप ध्यान से सुनना होगा. अब जीव गोस्वामी, ये भक्ति विज्ञान गोस्वामी महाराज बहुत सुंदर समझाते हैं कि जीव गोस्वामी ने बहुत सारे संदर्भ लिखे हैं. तो उनके संदर्भों से उन्होंने लिया, कपिल देव का जो भागवतम से लिया, और महाभारत से लिया, और अग्नि पुराण से लिया है रूप गोस्वामी. तो ये सब का मिश्रण करके उन्होंने 2 सिंपल सॉल्यूशन दिया है, जिससे हम इस कैंसर का नेचुरल क्योर है. ऑल द अदर थेरेपीज में फेल. तो अभी अग्नि पुराण में एक स्टोरी आता है श्रवण कुमार का. आपने मालूम है, श्रवण कुमार अपने माता पिता को ले जा रहा था, तो उसको दशरथ महाराज ने बाण से मार दिया. तो जब श्रवण कुमार मर गया तो श्रवण कुमार के पिता को जब इतनी वेदना हुई, तो उस वेदना में जब वो रोने लगे,
तो रोते रोते उन्होंने कहा कि मेरे साथ इतना पेन क्यों हो रहा है। तो वो पेन में वो कहते हैं, हाँ मैंने शायद 2 गलतियां जिंदगी में की होंगी। शायद मैंने भगवान के अर्च विग्रह को एक पत्थर समझा, सामान्य पत्थर समझा होगा, ये मैंने शायद गलती की होगी। या मैंने किसी एक डिवोटी को शायद मन में सम्मान नहीं किया होगा। मे बी आई डिड नॉट रेस्पेक्ट समबडी इन द माइंड, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग थ्रू दिस। ऐसा करके वो अपनी निंदा करते हैं। तो उसके बाद जीव गोस्वामी दूसरा श्लोक कोट करते हैं महाभारत से, जहाँ पे व्यासदेव लिखते हैं कि अगर आपको भगवान की कृपा चाहिए तो आप दूसरों के साथ सौम्य रूप से स्वभाव कीजिए और दूसरों को डिस्टर्ब मत कीजिए, और जैसे एक पिता पुत्र से प्रेम करता है आप दूसरे व्यक्ति के साथ प्रेम कीजिए। तो फिर जीव गोस्वामी कोट करते हैं कपिल देव की श्लोक को, 3rd कैंटो। फिर जहाँ पे कपिल देव कहते हैं कि एनवी का 2 ही सोल्यूशन है, भगवान जो सबके हृदय में है उस भगवान को पहचानो, उस भगवान को देखो और उसके उदर की सेवा करो। उदर मतलब स्टमक। तो अभी जी गोस्वामी सबको कंबाइन करके इसका सोल्यूशन सिंपल देते हैं। ऑल ऑफ दिस कम्स टू 2 सोल्यूशन। वन इज रेस्पेक्ट अदर्स, सबका कॉमन यही है, रेस्पेक्ट अदर्स। और दूसरा सर्व देम, स्पेशली सर्व देयर उदर, मीन्स सर्व देयर स्टमक। हाउ डू यू सर्व समबडी स्टमक? बाय फीडिंग प्रसाद। बहुत सिंपल लग रहा है ना, बट इट्स वेरी डीप साइंस। रेस्पेक्ट कम्स फ्रॉम, रेस्पेक्ट मीन्स लॉर्ड, रिकॉग्नाइजिंग द लॉर्ड इन द हार्ट। इसका जो फर्स्ट स्टेप है, एनवी का सोल्यूशन है ये देखना कि उसके हृदय में भगवान है, पर हमें भगवान नहीं दिख रहे हैं उसके हार्ट में, और उसके हार्ट में भगवान को देखना है तो पहला रेस्पेक्ट। एंड सेकेंड इज व्हाट? फीड प्रसाद, बिकॉज दैट इज सेवा। देखो हमारे यहाँ पे, हमारे लाइफ में 2 प्रॉब्लम्स, एक है अटैचमेंट और दूसरा है एनवी। अटैचमेंट को संस्कृत में बोलते हैं राग और एनवी को बोलते हैं द्वेष। तो राग जो अटैचमेंट है, अटैचमेंट का सोल्यूशन क्या है? गिविंग, चैरिटी, दान। दान सोल्यूशन है राग का, अटैचमेंट का। और सोल्यूशन चैरिटी का, बेस्ट चैरिटी क्या कर सकते हैं आप? प्रसाद खिलाओ, इजिएस्ट चैरिटी एंड हैप्पी चैरिटी ऑल्सो। एंड आई डोंट नो इफ आई हैव एक्सपीरियंस व्हेन यू सर्व प्रसादम, आई ऑलवेज टेक प्रसाद एंड आई एम सेइंग कि जो सर्विंग खिला रहे हैं मुझे प्रसाद, वो इतने खुश है, हम खा रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन होता है बहुत बार, यू हैव टू ईट अ लॉट, बट जो सर्विंग कर रहा है वो इतना एनर्जेटिक, एंथुसियास्टिक, इतना खुश दिखता है। ये तो रूल है, जो सर्विंग करता है वो ज़्यादा खुश रहता है, जो खाता है वो कम खुश रहता है। नहीं, आई थिंक, आई एम श्योर यू ऑल ऑफ अस हैव एक्सपीरियंस्ड। तो सर्विंग इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ दान। वो दान का शुरुआत है। जो राग है, अटैचमेंट है, अटैचमेंट का सोल्यूशन है दान। जैसे भागवतम में बहुत सुंदर श्लोक आता है, और थोड़ा टेक्निकल हो रहा है पर आप इसको थोड़ा ध्यान से सुनिए, इट्स अ लाइफ चेंजिंग कॉन्सेप्ट। श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नृणाम संति सहस्रशः अपश्यतामात्मतत्वं गृहेषु गृहमेधिनाम। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जो गृह मेधी हैं उनके पास डिस्कस करने के लिए हजारों विषय हैं, वो पूरा एनवी से भरे हैं। जो मेधी शब्द है, मेधी शब्द का अर्थ है ईर्ष्या, एनवी। तो जो ईर्ष्या है बहुत कॉमन है, और वो जो द्वेष है, एनवी है, उसका सॉल्यूशन है रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट मतलब मान देना, और उसका हायर रेस्पेक्ट है मैत्री, फ्रेंडशिप। तो 2 सॉल्यूशन है बेसिकली, दान और मान। दान में क्या है? दान सिंपल दान, प्रसाद खिलाओ। इसलिए इस्कॉन के हर प्रोग्राम में हम प्रसादम इज वन ऑफ आवर मेन एक्टिविटीज। इस्कॉन का आपने देखा होगा, इस्कॉन में आने के पहले आपको कॉन्सेप्ट ऑफ प्रसाद होगा कि ऐसा कोई बूंदी दे देगा, 2 बूंद। इस्कॉन में आके प्रसादम का डेफिनेशन बदल जाता है। सो दिस इज द बेस्ट वे टू बिकम नॉन एनवियस। इसीलिए प्रभुपाद एंकरेज्ड इन ऑल ओवर इस्कॉन टेम्पल्स कभी भी ज़्यादा सेविंग्स नहीं रखने का। पैसा जो भी आता है उसको प्रसादम में, इसीलिए हमारे मंदिर में एवरी संडे फेस्टिवल होता है, और हर फेस्टिवल में हम प्रसाद बांटते हैं। ब्रेकफास्ट, लंच, जो भी आता है सबको खिलाते हैं। तो क्यों ऐसा करते हैं? It increases a non-envious nature of giving. So dan and respect. So basically simple way to overcome envy, 2 activities. What are the 2 activities? Respect, serve prasad. रूप गोस्वामी बोलते हैं ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधिर प्रीति लक्षणम। प्रीति के 6 लक्षण हैं।
ददाति प्रतिगृह्णाति, किसी को गिफ्ट देना, गिफ्ट लेना, गुह्यम आख्याति पृच्छति, कॉन्फिडेंशियली कुछ बातें करना, सुनना, भुंक्ते भोजयते चेवा, प्रसाद खिलाना और खाना पीना। तो सिंपल सॉल्यूशन, रेस्पेक्ट एंड फीड प्रसाद। शिला प्रभुपाद दोनों करते थे। एक बार मॉर्निंग वॉक में प्रभुपाद जा रहे थे, सामने से, इंग्लैंड में, वेस्टर्न कंट्रीज में एक अच्छा कल्चर है, वो कैसे भी आप अजनबी रहोगे आपको ग्रीट करते हैं वो लोग। इंडिया में आप कितने भी जानते भी रहेंगे तो आपको थोड़ा वो अवॉइड करते हैं, पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई। किसी ने एक अच्छा मुझे कोटेशन भेजा व्हाट्सएप में कि एक ज़माना ऐसा था जब पड़ोसी भी घर के हिस्सा हुआ करते थे, आज एक ही घर में न जाने कितने पड़ोसी हैं। तो श्रीला प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक में गए थे, तो एक आदमी सामने से आया, प्रभुपाद ने उसको देखकर कहा गुड मॉर्निंग, तो उसने भी कहा गुड मॉर्निंग। तो ड्यूटी ने कहा प्रभुपाद आपको हरे कृष्णा बोलना चाहिए था, हम लोग तो हरे कृष्णा जिंदाबाद वाले, हरे कृष्णा पार्टी के हम लोग, तो आपने ऐसे कैसे किया, उनको गुड मॉर्निंग क्यों कहा। प्रभुपाद ने कहा अभी हरे कृष्णा बोलते तो उसको समझता नहीं, शायद वो बिल्डर होता था, पर अभी गुड मॉर्निंग कहा तो उसने भी गुड मॉर्निंग कहा, कम से कम उसने भी रेस्पेक्ट किया, उसको भी अच्छा लगा, तो उसका कहीं तो स्वीकृति मिला। सी व्हाट Prabhupada has done is shown respect by greeting him the way he would understand. जैसे हमारे एक डिवोटी है मंदिर में, वो हमेशा चींटियों को खाना खिलाते रहते। जैसे मैं यहाँ से मंदिर जा रहा था तो वर्ली के उधर मैं, हमारा गाड़ी ट्रैफिक सिग्नल में रुक गया, तो मैं बाहर देखा, उसको देखा मैंने सिग्नल में, उसका घर वर्ली में ही है, तो उसको जो सामने वो कसाई था वो मुर्गियों को काट रहा था, उसको जाके कुछ तो बात कर रहे हैं उसके साथ, पूरा धोती कुर्ता में है वो, वाइट धोती कुर्ता तिलक में, उसको कुछ तो समझा रहा है और उसके हाथ में कुछ तो बॉटल है। मैंने देखा भाई यार, मैं कुछ बोला नहीं उस समय। फिर मंदिर में जब अगले दिन आया उसको मैंने बोला क्या कर रहा था तुम, नहीं प्रभु जी मैं उसको 3 महीने से प्रीचिंग कर रहा हूँ, उसको मैंने कन्विंस कर रहा हूँ कि उसको ये बिजनेस छोड़ दे, मैं तेरे को हेल्प करूँगा फाइनेंशियली, तो ये मुर्गी काटना छोड़ दे। और वो मुर्गी को ना प्रभु जी मैं रोज़ जाके शाम को सब मुँह काटने के पहले सब मुर्गियों के मुँह में चरनामृत डालता हूँ। ही इज सो मच इनटू, एक्चुअली इन द मूड ऑफ रेस्पेक्ट। और हमेशा एंड्स कभी भी चलते रहेंगे ना, कभी फटनली रोक देगा, ए चींटी रुको रुको, वो चींटी के साइड से जाएगा, वो कभी इज वेरी वेरी कृष्णा कॉन्शियस एंड कॉन्शियस बोथ, वेरी रेस्पेक्टफुल। मैं उनको 20 साल पे जानता हूँ, एक बार भी मैंने 20 साल में कभी उनको किसी की भी निंदा करते हुए नहीं देखा, और 20 साल में कभी अपनी प्रशंसा जब भी वो सुनते हैं ना वो भाग जाते हैं, उनको अपनी प्रशंसा बिल्कुल, ऐसा कोई नहीं है मटेरियल वर्ल्ड में, कोई मिलेगा ही नहीं आपको ऐसा। ही इज अ रियल जेन्युइन सोल हु रेस्पेक्ट्स एवरीवन। तो उसने एक बार भागवतम क्लास में परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज को सबके सामने प्रश्न पूछा, और इंटेंस क्लास था, तो उसने कहा महाराज कभी कभी हम देखते हैं हमारे सामने चींटी आती है तो हमारा पैर उसको कुचल देता है, तो क्या वो हिंसा हुआ, तो उससे हमें कैसे बचना चाहिए। तो सबने बोला अरे बाप रे क्या प्रश्न पूछा, इसको क्या पूछना चाहिए, किधर पूछना चाहिए मालूम नहीं, ऐसा सोचने लगे हम लोग। तो महाराज ने उसके क्वेश्चन को ध्यान से सुना, फिर कहा हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, हिंसा, वायलेंस। और फिर महाराज डिटेल में चले गए कि वायलेंस कैसे हस्बैंड और वाइफ के बीच में कैसे झगड़ा होता है, कि उस समय कुछ तो किसी का पंगा हुआ रहेगा, कुछ तो इश्यू हुआ रहेगा, महाराज को पता चला होगा। तो महाराज ने पूरा डिटेल में कैसे हस्बैंड वाइफ के प्रति वायलेंस करता है, जब बोलता है कि तुम माया हो, या वो कठोर शब्द बात करता है तो कैसे अपनी पत्नी का इंसल्ट करता है, तो ये वायलेंस, वो पूरा हस्बैंड वाइफ के झगड़े के ऊपर उन्होंने आधा घंटा लेक्चर दिया। और मैं बीच बीच में प्रभु जी को देख रहा था कि इसका क्वेश्चन कुछ और था। वो चींटों के बारे में पूछा था महाराज, पूरा हस्बैंड वाइफ का, और ये शादी भी नहीं किया है इसने, ये तो ब्रह्मचारी भी नहीं है, बट ही इज लाइक बैचलर। तो महाराज का पूरा आंसर खत्म होने के बाद महाराज ने वापस उसको देखा, सो प्रभु आपके प्रश्न का उत्तर मिला आपको, तो दैट आंसर वॉज कंप्लीटली डिफरेंट। तो देन महाराज सेड डज इट आंसर योर क्वेश्चन, सो एवरीबडी लाफ्ड। देन महाराज सेड whether it answers your question or not, it has answered many people's question. Many people had a question on relationships. Anyway, the point why I said this story is that respect, that is the point. जैसे श्रीला प्रभुपाद के पिताजी क्या करते थे पता है आपको, उनका दुकान था, रात को दुकान लॉक करने के पहले वो अपने दुकान में वो खाना रख के आते थे। क्यों? ताकि जो चूहे आएंगे रात को खा लेंगे। उनका आइडिया था कि चूहे जो, अरे वाह, why he kept that so that the rats are also happy.
feeding prasad not just to humans. Imagine, he fed it to rats also. Prabhupada's father was always so sensitive. So his logic was that if they eat that, then they will not disturb my clothes and my my things in the shop. आपको महाभारत में स्टोरी पता है भीमसेन का? एक बार भीमसेन द्रौपदी ने भीमसेन ने एक लोटस लेके आया, 1000 पेटल का लोटस दिया द्रौपदी को. द्रौपदी को बहुत अच्छा लगा. द्रौपदी ने कहा अभी मुझे ये बेट देना है युधिष्ठिर को, हमारे महाराज युधिष्ठिर महाराज. तो उसने भीम को कहा कि तुम जाके अभी ये जो 1000 पेटल लोटस है वहाँ पे मिलता है किधर, तुम टॉप माउंटेन में, वहाँ से आप लेके आओ. तो मालूम है उस समय क्या हुआ जब वो गए लेने को? कौन मिला उनको रास्ते में? हनुमान जी. पर भीम पहचान नहीं पाए हनुमान है, उनको लगा कोई बंदर लेटा हुआ है. तो हनुमान जी, वो बंदर को भीम ने क्या कहा? रास्ते से हट जाओ. तो वो बूढ़े बंदर ने क्या कहा कि मैं तो बहुत वीक हूं, तुम मेरे ऊपर से चले जाओ. तो भीम ने क्या कहा? भीम दैट टाइम इतना स्ट्रांग वॉरियर है, ही कुड हैव इजीली गॉन. पर उस समय कल्चर था, ऐसा नहीं करते, किसी के ऊपर से नहीं चल के जाते. रिस्पेक्ट मतलब उसको. तो बंदर ने कहा ठीक है मेरा पूछ साइड में कर दो. वो अलग पास टाइम हुआ. फिर वो पूछ को दोनों हाथ से उठा नहीं पाया. फिर वो बंदर ने अपना असली रूप दिखाया, हनुमान जी. बट मैं, इफ यू अंडरस्टैंड दिस पास टाइम, भीम इज सो स्ट्रांग, सच अ पावरफुल वॉरियर, यू कुड हैव इजीली क्रॉस्ड. व्हाई डिड ही बेंड एंड स्टेप? यू नो, ही जस्ट ट्राई टू पिक अप द टेल. द आइडिया इज जो इट्स अ पार्ट ऑफ रेस्पेक्ट. जब मैंने आश्रम ज्वाइन किया मंदिर में, मैंने पहला लेसन सीखा कि बाल्टी को ऐसा पैर से नहीं मारने का. मतलब छोटा सा चीज़ था, हम लोग ऐसा बाल्टी को ऐसा साइड में कर दिया मैंने. तो वो मेरा जो इंचार्ज था उसने कहा प्रभु जी ऐसे क्यों कर रहे हैं आप? मैंने कहा नहीं, बाल्टी को साइड में गया, वो पानी लेना था. नहीं, हाथ से करो ना. इमीडिएटली सेड, एंड द वे ही सेड इट इमीडिएटली रेजोनेटेड विद मी. देयर इज नथिंग रॉन्ग, बट इट मेक्स, इट्स अ साइन, इट्स अ स्मॉल सटल साइन ऑफ रेस्पेक्ट. लाइक अभी वैदिक कल्चर में जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होता है, आजकल म्यूजिक कैसे बजाते हैं, गिटारिस्ट कैसा रहेगा वो अपना शो ऑफ करने के लिए बजाता है. वैदिक कल्चर में ना कोई भी वाद्य बजाने के पहले उसको पहले प्रणाम करते हैं कि आई एम नॉट गोइंग टू प्ले यू, यू आर गोइंग टू यूज मी टुडे इन परफॉर्मेंस ऑफ समथिंग डिवाइन. सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इज वर्शिप एंड रेस्पेक्ट इज पार्ट ऑफ वैदिक कल्चर. एंड द बेस्ट वे टू ओवरकम एनवी इज टू प्रैक्टिस दिस कल्चर ऑफ रेस्पेक्ट एंड वर्शिप by respecting and feeding prasad. Simple solution. Of course, now I want to clarify, respect does not mean respect everyone equally. ठीक है, सबको एक जैसा ऐसा नहीं हो सकता. अभी कुछ लोगों को हमें मन में सम्मान देना होगा, और कुछ लोग जो बहुत एडवांस्ड है और बहुत इवॉल्व जिनका कॉन्शियसनेस है उनको कंप्लीट रेस्पेक्ट देना होगा. तो गलत नहीं है. पर साधना भक्ति जब हम करते हैं तो ये रिमाइंडर, ये जो अभी सेशन हो रहा है इसको कहते हैं रिमाइंडर सेशंस. These are exercises, these are get-togethers where we remind each other on the importance of respect, importance of overcoming envy. And if we can't respect, if we can't see Krishna in the heart of others, then we are basically atheists only. We are faceless atheists. You know, हमारा atheism दिख नहीं रहा है. Because we have no right to hate anyone or look down. किसी को नीचे देखने का कोई अधिकार नहीं है हमें. वो बहुत बड़ा हम गलती कर रहे हैं. और ये शॉकिंग है मेरे लिए. तो आप देखते हो जब टेररिस्ट लोग ऐसे मारते हैं किसी को, ये सोच के कि हमारा जो धर्म है वो खतरे में है, और जब किसी को मार देते हैं इन द नेम ऑफ गॉड, इट इज शॉकिंग बिकॉज दैट इज अ ग्रेट एक्सट्रीम एग्जाम्पल ऑफ डिसरिस्पेक्ट. दैट मीन्स दे आर एक्चुअली मोस्ट एनवियस पीपल डू दैट. जैसे हमारे जोलिनेफ जयपताका स्वामी महाराज जब अभी भी प्रचार कर रहे हो, एक बार वो स्पेन एयरपोर्ट में तो एक ऐसा फैनेटिक आया, उसने सीधा पेट में उनको चाकू घोप दिया. महाराज ऐसे आईसीयू में थे, कितने दिन तक बाल बच गए. वो इतना इंटेंस था. 1980s में कुछ हुआ था. तो जब भी मैं इंटरनेशनल ट्रैवल करता हूँ बहुत बार, तो मैं गौरव पलटू को बोलता प्रभु जी मेरे को ट्रैक में और टी शर्ट पहन के मैं जाऊँगा, यू नो. सो आई प्रिफर टू ट्रैवल इन स्वेटर पहन के. ऐसा आई ट्राई टू गो इन रेगुलर क्लोथ्स, बिकॉज पागल लोग किधर भी, you know, they're so envious, they just can't stand, and it's all in the name of religion. So Srila Prabhupada wanted us to become non-envious, and that's why if you see, वो जो डॉक्टर मिश्रा के साथ मैंने प्रभुपाद के ऊपर क्लास किया था यहाँ पे दिसंबर के फर्स्ट वीक में. तो श्रीला प्रभुपाद डॉक्टर मिश्रा को इतना प्रसाद खिलाते थे, उनका बीमारी दूर. और हिपीस, तो उस समय अमेरिका में जो सब लोग उनकी निंदा करते थे हिपीस की, सारे हिपीस ने जब इंटरव्यू लिया गया उन्होंने कहा कि स्वामी जी प्रभुपाद जी अकेले व्यक्ति थे जो हमें सम्मान करते थे. एक्चुअली वी फेल्ट ही रिस्पेक्टेड अस.
And not only respected us, what he did? Fed them prasadam. Every day दोपहर को कुकिंग करके उनको खिलाते थे और सबको बोलते थे ज़्यादा खाओ, चपाती दाल राइस सब्जी सब अकेले बनाते थे, सबको खिलाते थे, सब खा के जाते थे, फिर प्रभुपाद उसको क्लीनिंग करते थे और सबको डबल ट्रिपल खिलाते थे। फिर एक ही लड़के को वो रोकते थे खाने से, क्योंकि वो लड़का 20 चपाती खाता था। तो 20 चपाती खाने के बाद प्रभुपाद बोलते थे बस तुमको अभी नहीं मिलेगा बाकी किसी को रोका नहीं प्रभुपाद ने। सो ये दो चीज़ हैं, राग और द्वेष, अटैचमेंट एंड एनवी। और राग का और द्वेष का सोल्यूशन क्या है? दान और मान। दान मीन्स food, man means respect. So solutions are simple. First solution is what? Hearing, understand and apply. Second solution, respect. And third solution, feed prasad. तो अभी जो respect वाला point है उसको मैं थोड़ा और 5 मिनट में I want to complete this. See, respect basically, how to practice, start practicing respect principle in our life is we move from judgment. Constantly हम judgment करते हैं ना, measure करते रहते हैं हर एक को, measuring चलता है हमारा. Our life is centered on measuring and judging others. So from judgment, let us come to the stage of understanding. What is he actually doing? What is he trying to say? From his frame of reference. See, whenever we are measuring and calculating others, we are doing it subtle on a subtle level to see how I am better than him or how he is less than myself. वी वॉन्ट टू शो, हम दिखाना चाहते हैं कि हम उससे अच्छे हैं अपने आप को ही. यू नो, हु डू यू थिंक यू आर एंड ही थिंक्स हु डू यू थिंक यू आर. दिस इज अ सटल लेवल, इट गोज ऑन. दैट्स व्हाई भक्तिविनोद ठाकुर ने माया का जो डेफिनेशन बहुत अच्छा दिया है. उन्होंने कहा है म्रियते अनाया इति माया. बहुत अच्छा डेफिनेशन भक्तिविनोद ठाकुर ने दिया है. म्रियते अनया इति माया. म्रियते मतलब क्या पता है आपको? म्रियते मतलब मेजरिंग, कैलकुलेटिंग, मेजरिंग, जजिंग. अनया मतलब इन कनेक्शन विद मी. जब हम दूसरों को मेजर करते हैं अपने कंपैरिजन में, म्रियते अनया इति, दैट इज कॉल्ड इल्यूजन, माया. तो हम दूसरों को मेजर नहीं कर सकते. अरे उसके क्या फीलिंग्स हैं, क्या स्ट्रगल है, वी कांट जज. जैसे परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज का मैं लेक्चर सुन रहा था हाल ही में, तो वो लेक्चर में बोल रहे थे हम जब भगवान और भक्तों को जज करते हैं और उनको मेजर करने का ट्राई करते हैं, तो वो तो वैसे ही हुआ जैसे कोई जो चीनी का जो चम्मच होता है, टीस्पून, वो चम्मच अगर सोचता है कि मैं सागर को नापूंगा, मेरे चमचे में, मेरे में मैं सब सागर का पानी निकालूंगा, तो कितना साल लगेगा उसको? एक एक चम्मच से आप सागर का पानी निकालोगे. तो महाराज ने कहा जब हम सोचते हैं कि हम इसको पूरा फिगर आउट कर लेंगे, इसको पूरा समझ लेंगे, भगवान को पूरा समझ जाएंगे, आई कैन मेजर एवरीवन एवरीथिंग, देन वी आर लाइक दैट स्पून, बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल. एंड एज लॉन्ग एज वी हैव दिस हैबिट ऑफ मेजरिंग अदर्स, we will remain in this material world. We will never be able to go back to Krishna. And in this world, everything is facilitated so that we can measure others. ऐसा बनाया भगवान ने, हमेशा जजमेंट के लिए बनाया, मेजर करने का, पास करने का, जजमेंट पास करने का. जैसे इंग्लैंड के एक राजा थे, किंग जॉर्ज 6, नाम सुना होगा आपने, किंग जॉर्ज. बहुत सारा जॉर्ज आए, किंग जॉर्ज. एक्चुअली ये पुराना किंग जॉर्ज है, मैं नाम नंबर भूल गया था, मैंने 6 बोल दिया. बाद में रियलाइज इट्स समबडी बिफोर दैट, आई थिंक 2 और 3. तो किंग जॉर्ज ने एक दिन बोल दिया कि आज से सब जो मेजरमेंट होगा वो मेरे पैर से आप नापोगे. तो फुट, माई फुट, तब से वो फुट वाला सिस्टम चालू हो गया. 6 फुट का आदमी बोलते हैं ना, वो फुट कहाँ से आया? किंग जॉर्ज के चरण कमलों का वो कैक्टस फीट, वहाँ से शुरू हुआ है वो. दैट एटीट्यूड, यू नो, आई एम ग्रेट फ्रॉम माई फुट. Actually, talking about this king, I remembered politicians are the worst example of measuring and judging. Constantly. अभी इलेक्शन आ रहा है, आप देखो कितना होगा, तो हमारे अंदर वो बीमारी आ जाएगी. गवर्नमेंट एंड ऑपोजिशन, अब देखो इनका ड्रामा देखो अभी अगले 4 महीने में जो होगा. एक दूसरे की निंदा करेंगे, एक दूसरे का वो होगा. एक्चुअली सोचो ऐसा हो सकता है कि आई डोंट नो, आई एम जस्ट इमेजिनिंग. जस्ट इमेजिन
अगर ऐसा हो गया तो कैसा होगा इंडिया का पॉलिटिक्स। गवर्नमेंट बोलता है कि हमने 4 साल में ये गलतियां की, पर हमको वोट दो, हम अगले 4-5 साल में ऐसा ऐसा अच्छा करेंगे। और ऑपोजिशन बोलता है पिछले 4-5 साल में सरकार ने ये सब अच्छा काम किया, पर हमको वोट दो, हम और भी अच्छा करेंगे। ऐसा हो सकता है क्या? आप बोलेंगे प्रभु जी आप पागल हो रहे हैं। हाउ कैन यू इवन ड्रीम? दिस इज इम्पॉसिबल। दिस कैनॉट हैपन इन द मटेरियल वर्ल्ड। बट स्पिरिचुअल लाइफ मीन्स एक्चुअली ऐसा होना चाहिए। स्पिरिचुअल वर्ल्ड ऑलवेज अप्रिशिएटिंग अदर्स, सीइंग अदर्स गुड, एंड पॉलिटिशियंस टीचर्स मैनी। अभी मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ ना, तो मुझे आई कैन फील द पल्स। जैसे अभी मैं कहीं आ रहा था, भुवनेश्वर से मैं आ रहा था फ्लाइट में, तो मैंने अपना मैं लास्ट में एंट्री करता हूँ जनरली, क्योंकि वो मेरे को मालूम है कि प्लेन मेरे बिना तो जाएगा नहीं। तो वो ट्रेन में कैसा है, आपको भागना पड़ता है, पर इधर कैसा आराम से बैठो, अपना रीडिंग करो, सब लास्ट में जाने का। तो मैं लास्ट में गया तो अपना ओवरहेड बिन में अपना रख रहा था हैंड बैगेज, तो सब बैठे थे, सबने देखा कि ये तो कोई अलग टाइप का आ गया। तो एक आदमी ने सबके सामने पूछा कि स्वामी जी क्या इलेक्शन का क्या ख्याल है आपका, कौन जीतेगा इलेक्शन? अभी इतना ट्रिकी क्वेश्चन था वो सब देख, और सब कोई पेपर पढ़ रहा है, जैसे क्वेश्चन पूछा सब मेरे को देख रहा है, मेरा आंसर क्या होगा। ही कॉट मी एक्चुअली। प्रभु स्वामी जी इलेक्शन कौन जीतेगा, इलेक्शन कौन जीतेगा? अभी मैं जो आंसर दूंगा उसको समझ जाएगा कि मेरा लॉयल्टी किसके प्रति है। और मेरा ऐसा उसूल है कि वोट, जो आपका वोट है, दैट इज स्ट्रिक्टली प्राइवेट, सीक्रेट बैलेट बोलते हैं ना उसको। सीक्रेट बैलेट मतलब आपको बताने की जरूरत नहीं है किसी को, तो मुझे किसी को बताना नहीं है वो, अनलेस माई क्लोज फ्रेंड्स। तो आई डिडंट वांट टू टेल हिम, बट आई फेल्ट कॉर्नर्ड। तो भगवान ने मुझे बुद्धि दी, मैंने तुरंत कहा कि जैसे उसने पूछा स्वामी जी कौन जीतेगा इलेक्शन, तो मैंने तुरंत कहा आपका क्या ख्याल है कौन जीतेगा? तो वो तुरंत उसने, वो थोड़ा पूरा मोदी भक्त था, वो पूरा फैशन, अरे मोदी जी जीतेंगे मोदी जी। मैंने कहा वेरी गुड करके मैं बैठ गया। जैसे मैं बैठने जा रहा था, नहीं स्वामी जी आपने आंसर नहीं दिया, आपको कौन। तो फिर अभी सब देख रहे हैं मुझे, मैंने कहा तुरंत मेरे मुंह से ऐसा भगवान ने बुद्धि दिया बोलने का, मैंने कहा टफ फाइट होगा, टफ फाइट बोल के मैं बैठ गया। तो सब हंसने लगे, सबको समझ गया। फिर एक ने बोला आप भी नेता बन सकते हैं स्वामी जी। It was too good. So this is like number one entertain, आज का number one entertainment ये है। And I know it's impossible to see our own faults, but if we can't see, then we are politicians actually. And material world is centered on this. I am greater than him, and even when we say that he is very great, अरे वो बहुत अच्छा है मालूम है ये, even when we, no, that's a subtle thing. It's a very deep point. Even when I say somebody is great, it is because I can measure him. You know, he is great means because I am measuring him. Ultimately, I am greater than him because I am expert in measuring. It's a very deep rooted. That's why ब्रह्मा जी ने अपना हाथ जोड़ के भागवतम में ऐसा इंटेंसली प्रे किया है, ऐसा दिल, उनका जो हार्ट फेल्ट प्रेयर है। ज्ञाने प्रयासमुदपास्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीयवार्तां स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवांग मनोवीर ये प्रायशो जितजितोप असिते स्त्रीलोक्यान। वो कहते हैं भागवतम में स्पष्ट रूप से, अजित जितोपी, जो अजित भगवान है जिनके ऊपर कोई कॉन्कर नहीं कर सकता, उनके ऊपर हम कॉन्कर कर सकते हैं। अजित जितोपि, अगर हम पहला स्टेप हमको करना है ज्ञाने प्रयासम, जो ज्ञान का जो हमारा प्रयास है, एनालाइजिंग अदर्स एंड जजिंग अदर्स, उदपास्य, उसे त्यागना होगा। एनालाइजिंग एंड जजिंग अदर्स, उसे त्यागना होगा। ज्ञाने प्रयासम उदपास्य, और क्या करना है, नमन्त एव, हाथ जोड़ के, बस ये मेरे बुद्धि के बाहर है। आई कैनॉट अंडरस्टैंड यू कृष्णा, ओ वैष्णव, यू आर बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। ये ब्रह्मा जी हैं, हमारे ओरिजिनल साइंटिस्ट हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं कृष्णा। हाउ कैन वी अंडरस्टैंड? आप पूछोगे ना साइंटिस्ट को, दे ऑल हैव आंसर फॉर एवरीथिंग एंड दे विल गिव एक्सपर्ट एनालिसिस, दे विल मेजर एवरीथिंग, बट दे डोंट अंडरस्टैंड, एक्चुअली वी कैन अंडरस्टैंड। जैसे आप पूछोगे ना, एक थियरी है कि यूनिवर्स कैसे आया, बिग बैंग से। और बिग बैंग का पूरा आइडिया क्या है कि वैक्यूम था, वैक्यूम से ऐसा बड़ा एक्सप्लोजन हो गया और बिग बैंग आ गया। फिर बाद में एक और ब्लैक होल थियरी आया कि हाउ एवरीथिंग विल एवेंचुअली एंटर इनटू अ ब्लैक होल। देन अनदर थियरी केम
that how Big Bang is not once. हमको लगा कि बिग बैंग हो गया, सब यूनिवर्स क्रिएट हो गया. नहीं, द एक्चुअल अभी जो लेटेस्ट थियरी है, ब्लैक होल थियरी, इज दैट बिग बैंग डजंट हैपन वंस, इट हैपन्स मल्टीपल टाइम्स. मतलब सब चला जाएगा ब्लैक होल में, everything is gone, but what will happen eventually, it is explained by these two astronomers, one British Martin Rees and one Victor Albert, he is from Armenia. ये दोनों ने अभी बहुत बार रिसर्च करके बताया कि ब्लैक होल में जाने के बाद भी ख़त्म नहीं होता है, उधर वो रहेगा बहुत सारे बिलियंस ऑफ ईयर्स तक, फिर वो एनर्जाइज होगा, फिर एनर्जाइज होके वो वापस बिग बैंग होगा, इट विल बी मैनिफेस्टेड अगेन. तो अभी पहले बिग बैंग हो गया बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले, अभी क्या है, यूनिवर्स जैसा हम देख रहे हैं वैसा है. कुछ समय बाद क्या होगा, कुछ बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद ये यूनिवर्स जाएगा किधर, ब्लैक होल में, उधर रहेगा बहुत साल तक, और उधर वापस वो एनर्जाइज होएगा, फिर एक दिन वापस बिग बैंग होगा. ऐसा करके ये यूनिवर्स साइकिल में जाता है. ऐसा साइंटिफिकली कैलकुलेशन के साथ समझाएंगे आपको, आप इंप्रेस हो जाओगे. पर ये तो हम शास्त्र में बोल रहे हैं, महाविष्णु के पोर्स में जाएगा, उधर रहेगा, फिर वापस सृष्टि का निर्माण होगा. वो हरिवंश राय बच्चन का पोएम है ना, नीड का निर्माण, फिर वापस होगा, क्रिएशन होगा. तो ये हमारा वैदिक फिलॉसफी है. उसको अच्छा आपने कैलकुलेशन दे दिया मैथमेटिक्स से और समझाया तो लोगों को इंप्रेसिव लगता है. बट व्हाई आई एम सेइंग दिस, द पॉइंट इज वी आर सो टाइनी, वी कैन अंडरस्टैंड द क्रिएशन, वी कैन अंडरस्टैंड गॉड, वी आर सो इनसिग्निफिकेंट. सो व्हाट वी शुड डू, नमंत एव, बो डाउन. So in Vedic culture, that's why we respect tree. नहीं, ट्री को रेस्पेक्ट करते हैं ना, बैनियन ट्री, तुलसी महारानी, प्लांट्स, ट्रीज, एनिमल्स वी रेस्पेक्ट, बर्ड्स, माउंटेन, हिमालयन माउंटेन, गिरिराज माउंटेन, रिवर्स वी रेस्पेक्ट. जैसे महाराज का एक लेक्चर में मैं सुन रहा था, तो राधानाथ स्वामी महाराज बोल रहे थे, इफ़ यू आर हम्बल यू विल बी हम्बल विद ऑल. ऐसा नहीं कि मैं इसके बाद हम्बल रहूँगा उसके साथ प्राउड रहूँगा, ऐसा नहीं होता है. इट्स एन यूनिवर्सल प्रिंसिपल. और हमारा जो मेन वर्शिपेबल डीटी कौन है, राधा रानी, राधा गोपीनाथ, राधा कृष्ण. राधा का मतलब अनाराधितो, शी इज द वन हु इज ऑलवेज वर्शिपिंग, शी इज ऑलवेज गिविंग दैट वर्शिप टू कृष्ण. फॉर दिस मेजरमेंट विच वी हैव, अ प्रैक्टिस ऑफ मेजरमेंट, दिस लीड्स टू अहंकार, दिस लीड्स टू फॉल्स ईगो, एंड देयरफॉर वी हैव टू ओवरकम दिस, एंड दिस फॉल्स प्राइड हैज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द हार्ट, अदरवाइज इट विल रीजनरेट. कितना भी हम हम्बल होते हैं, बाहर आता है. जैसे हमारे श्याम सुंदर प्रभु, उनका लिवर का कैंसर जैसा हो गया था, तो हमारे गोपीनाथ प्रभु है, उनका लिवर उन्होंने काट के उनको डाला, क्योंकि लिवर कैसा है, लिवर रीजनरेट होता है. अगर 10% भी रहेगा तो वापस वो रीजनरेट होता है. तो वो बहुत बड़ा स्टोरी हुआ था हमारे कॉन्ग्रेगेशन में. पर लिवर रीजनरेशन है वो 10% लगता है उसको, अगर रहेगा तो वापस आएगा. पर जो फॉल्स ईगो है ना, अभी कितना भी क्रश हो के हमको लगता है कि फॉल्स ईगो खत्म हो गया, मैं हम्बल हो गया प्रभु जी, पर वो 1% भी रहेगा ना, वो तुरंत रीजनरेट होता है. और ऐसा नहीं कि वो 10 साल लेगा, तुरंत इट रीजनरेट्स एक्सट्रीमली फास्ट. लाइक समटाइम्स वी गो थ्रू, हैव यू गॉन थ्रू ह्यूमिलिएशन इन लाइफ, हैव यू गॉन थ्रू सफरिंग, पेन? तो दैट इज अ टाइम व्हेन द फॉल्स ईगो इज टोटली क्रश्ड. सो वी इमेजिन, समटाइम्स वी मे थिंक दैट आई बिकम हम्बल, बट अगेन दैट्स वाई मटेरियल वर्ल्ड कैसा बनाया भगवान ने, रिपीटेड सफरिंग दिया है ना. क्यों रिपीटेड सफरिंग दिया है? कि बार बार हम्बल होता है ना आदमी, वो सफरिंग. सो इट्स अ बिटर मेडिसिन, दैट बिटर मेडिसिन इज गुड. जैसे आप मिठाई खाते हैं, बहुत पछता नहीं है ना मिठाई, गुलाब जामुन, रबड़ी, तो फिर क्या लेते हैं, हमारी मम्मी देती थी बचपन में, काला मेघा, वो कायम चूर्ण, ऐसा कुछ तो कड़वा लेते हैं, तो दैट हेल्प्स इन डाइजेस्टिंग इट. सॉरी, द पॉइंट इज वी नीड समथिंग बिटर ऑल्सो टू हेल्प अस डाइजेस्ट. तो जो रेस्पेक्ट मिलता है, जो प्रेज मिलता है, दैट इज व्हाट, स्वीट, अच्छा लगता है, हाँ. और उसको डाइजेस्ट करने के लिए सफरिंग इज ऑल्सो नीडेड, अदरवाइज आवर फॉल्स प्राइड, फॉल्स ईगो विल कीप इंक्रीजिंग. एक्चुअली स्वीट रोज खाएगा, दिन भर खाएगा तो कैसा लगेगा उसको, क्या होगा उसको? वंस इन अ वाइल स्वीट इज ओके, राइट, बट एवरी टाइम, every day it's deadly. Now this is not for you to think that okay, I am giving him too much respect, too much praise, so I have to give him bitter medicine. It is not for others, because false ego का ना दो features है actually, कर्तृत्व and भोक्तृत्व. कर्तृत्व मतलब doer and भोक्तृत्व means enjoyer.
for this doer thing, I am the greatest, that goes away when we start praising others and giving respect to others. And Bhoktritva, I am the enjoyer, that goes away when we start giving prasadam, when we start serving prasadam. So the basic जो अभी लोग बोलते हैं प्रभु जी पर आई नीड रेस्पेक्ट का क्या गलत है क्या डिज़ायर, ये तो बेसिक ह्यूमन नीड है, ऐसे लोग बोलते हैं. सो आई ऑल्सो टॉक अबाउट ह्यूमन नीड्स. मैंने तो पूरा मैं कार्ड लेके घूमता हूँ नीड्स के ऊपर, और रेस्पेक्ट तो बेसिक ह्यूमन नीड है. बट कैसा है, ये जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं एनवी, ये कॉन्टेक्स्ट में आप समझिए कि एनवी को निकालने के लिए जो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट रेस्पेक्ट वी विल गेट, स्पेशली इस्कॉन डेवोटी कम्युनिटी में ना रेस्पेक्ट की कमी नहीं. जैसे आपको प्रसाद मिलता है कि नहीं, तो रेस्पेक्ट भी मिलेगा. प्रसाद का टेंशन लेते हैं हम नहीं ना, तो रेस्पेक्ट का भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, रेस्पेक्ट मिल जाता है, जस्ट लाइक वी गेट प्रसाद. बट दिस रेस्पेक्ट इज वेरी डेडली. It can be digested, that respect if somebody gives you, that can be digested if there is an antidote of gratitude. If you have a mood of always being thankful, then that thank you mood will help us what? जो रेस्पेक्ट मिल रहा है उसको हम पचा पाएंगे. नहीं तो यू नो व्हाट, रेस्पेक्ट इज पॉइजनस. जो हमारा जो डिजायर है ना कि आई शुड बी प्रेज्ड, आई शुड बी अप्रिशिएटेड, दैट इज अ ड्रग. ऐसा खतरनाक ड्रग है कि यू रेस्पेक्ट इज समथिंग यू नेवर फील यू गॉट इनफ. कितना भी मिलेगा लगेगा और चाहिए, नहीं मिल रहा है. So therefore the solution is to be grateful, and the most important quality we have seen राधानाथ स्वामी महाराज say this, और हमारे उडुपी में पेजावर स्वामी है जो पिछले 82 ईयर्स से सन्यासी हैं, और अभी 88 में वो बहुत ट्रैवलिंग करते हैं. 6 साल की उम्र में उन्होंने सन्यास लिया था. तो उन्होंने कहा था कि जीवन में खुशी का यही स्रोत है, आवर गिविंग हैज़ टू बी मोर देन रिसीविंग. अगर ये हमारा लाइफ का प्रिंसिपल है दैट व्हाट आई एम गेटिंग आई शुड गिव मोर देन दैट, then we will not be affected by false pride. So therefore I would like to conclude. Today I went 10 minutes extra, but what is the time now? 8:40, 8:30 I should have finished, but I'll just conclude. So we are basically, topic today we discussed was solutions for envy. What are the few solutions? What is the first solution for envy? Hear, understand and apply. Second solution, respect devotees. And third, feed them prasad. And what are the 4 stages of envy? What is the first stage? Don't put it on the slide. Avagya. Avagya means I am superior to him. Second stage of envy, upeksha means I can't stand him. Third, dvesh means I hate him. What did you say? I hate him. Yeah. And what is the fourth? Ninda means I'll destroy him. So we can take, and we discussed about each stage, the consequences of each stage, what happens in that stage. Especially in avagya, our bhakti becomes sankuchit, it becomes constricted, and we practice becoming hypocritical. And at the stage of the second stage, at upeksha, it's like putting ghee on the ashes. And at the stage of dvesha, what happens? What are the consequences of dvesha? Anybody remembers? Yeah, at dvesha we become separatist, we lose peace. And lastly, at the stage of ninda, Lord is completely displeased with us. So let us end on a very sobering note. There are 3 topics. First topic we discussed today was how the agenda was what today? To know I have problem, I have faults. So now, having understood this, the next session we will discuss the remaining 2 topics. What are the 2 topics? How to seek forgiveness. क्षमा कैसे मांगना, वो भी एक कला है. How to seek forgiveness. And then the next topic is how to give forgiveness. If somebody comes and tells you sorry, or even if somebody doesn't tell sorry, how can we forgive that person? It's not easy, it's very tough, but our acharyas are very merciful. They have given us very simple methods by which we can practice this. So I'm grateful for all of your kind hearing. We will meet again on New Year's Eve. And this is all with an agenda, and hope that 2019 will be different. We will not have the same. Guru Maharaj used to say that, okay, you can make mistakes every day, but don't repeat your mistakes. So we have made some mistakes in 2018. Let us not repeat them in the next year. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Srila Prabhupada ki. Thank you very much. Hare Krishna.